जय गुरु। Conference will now be recorded. परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीहस्त लिखित सत्यानुषण ग्रंथ पाठ स्पष्टवादी हुओ किंतु मिष्ठभाषी हुओ कहवा आगुरु विवेचना कर किंतु कही विमुख हुओ नहीं। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। प्रथम भजन परिवेषण करिवे राधाकिशोरपुर देवेंद्रनाथ स्वाई सदाभाई पुओ देवेंद्रनाथ स्वाई भजन करिवे। देवेंद्र आज्ञा। जगत जीवन बल्लभ तुमे ही परम विभव हो जगत जीवन बल्लभ तुमे ही परम विभव हो तुमे ही परम विभव तुमे ही परम विभव हो जगत जीवन बल्लभ हो तुमे ही परम विभव हो जगत जीवन बल्लभ हो तुमे ही परम विभव केते मान गौरव हो कि होइब मुक्ति होइब केते मान गौरव हो कि होइब मुक्ति होइब हाँ तुमे मोर प्रभु तुमे मोर सबु तुमे मोर प्रभु तुमे मोर सबु तुमे मो परम बांधव हो जगत जीवन बल्लभ तुमे ही परम विभव हो जगत जीवन बल्लभ तुमे ही परम विभव शुणी तब सुर मूर्छना हो लागे बंचिबार बाहाना शुणी तब सुर मूर्छना हो लागे बंचिबार बाहाना हाँ जरा मृत्यु भय नासी दयामय जरा मृत्यु भय नासी दयामय श्रीचरणे सदा रखिब हो जगत जीवन बल्लभ तुमे ही परम विभव हो जगत जीवन बल्लभ तुमे ही परम विभव भिन्न अमृतर विधान हो दिव्य आनंदर संधान भिन्न अमृतर विधान हो दिव्य आनंदर संधान हाँ हे पुरुषोत्तम प्रभु प्रियतम हे पुरुषोत्तम प्रभु प्रियतम नासिल सकाळ अभाव हो जगत जीवन बल्लभ तुमे ही परम विभव हो जगत जीवन बल्लभ तुमे ही परम विभव तुमे ही परम विभव तुमे ही परम विभव हो जगत जीवन बल्लभ तुमे ही परम विभव जगत जीवन बल्लभ तुमे ही परम विभव
तुमे ही परम विभव तुमे ही परम विभव। जय गुरु। ସୁନ୍ଦର ଗଳାରେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ଚମତ୍କାର ଲାଗିଲା, ଅତି ମଧୁର ଲାଗିଲା, ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ହେଇଛି। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ୟା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଜନ କରିବେ ଆମର ଖୁଣ୍ଟୁଣିର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ଭାଇ, ଜଣେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ବୈଷ୍ଣବ ଭାଇ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାହୁ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁ। ବୈଷ୍ଣବ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ରଚନାରୁ କିଏ ଜାଣେ ମହିମା ତୁମର, କିଏ ଜାଣେ ମହିମା ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର, କିଏ ଜାଣେ ମହିମା ତୁମର, କିଏ ଜାଣେ ମହିମା ତୁମର। ଏ ଯେ କୁସୁମ ଗଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣ, এই যে কুসুম গণ ঝুলুଛନ୍ତି অনুক্ষণ, ঝুলে ঝুলে পণমন্তি চরণে তোমার, কিଏ জানে মহিমা ତୁମର, କିଏ ଜାଣେ ମହିମା ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର, କିଏ ଜାଣେ ମହିମା ତୁମର, କିଏ ଜାଣେ ମହିମା ତୁମର। এই যে বিহঙ্গ কূଳ রূপে চারুনাই ତୁଳ, ନାଚି ନାଚି ଗାଉଛନ୍ତି କରୁଣା ତୁମର, ସାରେ ନିଶା ଧାନି ପଧା ମପା ମାଗରେ ଗରେ ସା, ମାପା ଧାନି ସାରେ ନିଶା ସା। ଏ ଯେ ବିହଙ୍ଗ କୂଳ রূপে চারনাই ତୁଳ, ନାଚି ନାଚି ଗାଉଛନ୍ତି କରୁଣା ତୁମର। এই ଦେଖ କଲୁଣିନି କୁଳୁ କୁଳୁ ପ୍ରଦାୟିନୀ, এই ଦେଖ କଲୁଣିନି କୁଳୁ କୁଳୁ ପ୍ରଦାୟିନୀ, କୁଳୁ ଶବ୍ଦେ ପଖାଳୁଛି ଚରଣ ତୁମର, କିଏ ଜାଣେ ମହିମା ତୁମର, କିଏ ଜାଣେ ମହିମା ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର, କିଏ ଜାଣେ ମହିମା ତୁମର, କିଏ ଜାଣେ ମହିମା ତୁମର।
ଜଗତର ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ତୁମକୁ ଈଶ୍ୱର ମାନେ ପ୍ରଣମନ୍ତି ସଦା ସର୍ବେ ଚରଣେ ତୁମର। ଜଗତର ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ତୁମକୁ ଈଶ୍ୱର ମାନେ ପ୍ରଣମନ୍ତି ସଦା ସର୍ବେ ଚରଣେ ତୁମର। ମୁହିଁ ଯେ ଅଧମ ପ୍ରାଣୀ ଭକ୍ତି ସ୍ତୁତି ନାଇଁ ଜାଣି, ମୁଇଁ ଯେ ଅଧମ ପ୍ରାଣୀ ଭକ୍ତି ସ୍ତୁତି ନାଇଁ ଜାଣି, ଅନୁକୂଳେ କୃପା କରି ଦିଅ ଚରଣ ତୁମର। କିଏ ଜାଣି ମହିମା ତୁମର, କିଏ ଜାଣି ମହିମା ତୁମର। ପରମେଶ୍ୱର କିଏ ଜାଣି ମହିମା ତୁମର, କିଏ ଜାଣି ମହିମା ତୁମର। এই যে কুସୁମ ଗଣ ଝୁଲୁଛନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣ, এই যে କୁସୁମ ଗଣ ଝୁଲୁଛନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣ, ଝୁଲି ଝୁଲି ପ୍ରଣମନ୍ତି ଚରଣେ ତୁମର। କିଏ ଜାଣି ମହିମା ତୁମର, କିଏ ଜାଣି ମହିମା ତୁମର। ପରମେଶ୍ୱର କିଏ ଜାଣି ମହିମା ତୁମର, କିଏ ଜାଣି ମହିମା ତୁମର। ପରମେଶ୍ୱର କିଏ ଜାଣି ମହିମା ତୁମର, କିଏ ଜାଣି ମହିମା ତୁମର। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବୈଷ୍ଣବ ଭାଇ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଲ, ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ପର୍ସନ ହେଇକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗଳାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରି ରଖିଛ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି। ଶବ୍ଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଠାକୁର ପ୍ରାର୍ଥନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜନ ସରିଯାଇଛି, ଆମର କୋରସ ହବ। କୋରସ ଟି ଗୋଟିଏ କୋରସ କରିବେ ପ୍ରବୋଧ ମହାପାତ୍ର, ଯାଜକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ ରୀତିଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରବୋଧ। ପ୍ରବୋଧ ଗୋଟେ କୋରସ କରନ୍ତୁ। जय मेरे ठाकुर जी परम दाता, हम सबके जीवन आधार। मेरे ठाकुर जी परम दाता, हम सबके जीवन आधार। मेरे ठाकुर जी परम दाता, हम सबके जीवन आधार। पतित पावन धन मेरे दिन बंधु सहारे, पतित पावन धन मेरे दिन बंधु सहारे, हम सबके जीवन करतार। पतित पावन धन मेरे दिन बंधु सहारे, पतित पावन धन मेरे दिन बंधु सहारे, हम सबके जीवन करतार। मेरे ठाकुर जी परम दातार, हम सबके जीवन आधार। मेरे ठाकुर जी परम दातार, हम सबके जीवन आधार। ओ प्रभु थामो पतवार फंसी नैया मझधार, प्रभु थामो पतवार फंसी नैया मझधार, शरण तेरे करो उद्धार। प्रभु थामो पतवार फंसी नैया मझधार, शरण तेरे करो उद्धार। पतित पावन धन मेरे दिन बंधु सहारे, पतित पावन धन मेरे
दिन बंधु सहारे हम सबके जीवन करतार। मेरे ठाकुर जी परम दातार, हम सबके जीवन आधार। मेरे ठाकुर जी परम दातार, हम सबके जीवन आधार। ओ आ ओ धन यौवन मिट जाए एक नाम ही सहाय। धन यौवन मिट जाए एक नाम ही सहाय। परमनाथ सबके रखवार। धन यौवन मिट जाए एक नाम ही सहाय। धन यौवन मिट जाए एक नाम ही सहाय। परमनाथ सबके रखवार। परम गुरु स्वामी मेरे अंतर्यामी। परम गुरु स्वामी मेरे अंतर्यामी। परम गुरु स्वामी मेरे अंतर्यामी। दयाल सबके है पालनहार। पतित पावन धन मेरे दिन बंधु सहारे। पतित पावन धन मेरे दिन बंधु सहारे। पतित पावन धन मेरे दिन बंधु सहारे। हम सबके जीवन करतार। मेरे ठाकुर जी परम दातार, हम सबके जीवन आधार। मेरे ठाकुर जी परम दातार, हम सबके जीवन आधार। पतित पावन धन मेरे दिन बंधु सहारे। पतित पावन धन मेरे दिन बंधु सहारे। हम सबके जीवन करतार। मेरे ठाकुर जी परम दातार, हम सबके जीवन आधार। हम सबके जीवन आधार। हम सबके जीवन आधार। जय। सुंदर भाव कोरस करछि बधाई तार मंगल हो। एवं या पर कीर्तन कीर्तन आम करेंगे राधाकृष्ण आमर करेंगे राधाकृष्ण प्रकाश भाई प्रकाश चंद्र बेहरा प्रकाश भाई कीर्तन टी करंतु। प्रकाश भाई कीर्तन करंतु। आज ये जीवन हेला प्रभु धन्य। तुमरे परस पाई देछ शरण नर नारायण। आउ किछि लोड़ा नाई। हे जुग पुरुषोत्तम हे जुग पुरुषोत्तम देल आशीष नाम। हे जुग पुरुषोत्तम देल आशीष नाम। हे जुग पुरुषोत्तम हे जुग पुरुषोत्तम देल आशीष नाम। हे जुग पुरुषोत्तम देल आशीष नाम। हे जुग पुरुषोत्तम देल आशीष नाम। हे जुग पुरुषोत्तम ए नाम रे जोग ए नाम रे भोग ए नाम जीवन तरी। ए नाम मनने ए नाम स्मरणे दुख जाए अपसरी। कि मधुर नाम रस देला मनार परास। कि मधुर नाम रस नाचे मनार परास। कि मधुर नाम रस कि मधुर नाम रस नाचे मनार परस। कि मधुर नाम रस नाचे मनार परस।
कि मधुर नाम रस नाचे मनार परस कि मधुर नाम रस तुटिछि तिमिरा उइछि भास्कर आलोकित ए संसार तुटिछि तिमिरा उइछि भास्कर आलोकित ए संसार थिला जाहा सुप्त करिला जाग्रत कल जीवन संसार थिला जाहा सुप्त करिला जाग्रत कल जीवन संसार कि मधुर नाम रस नाचे मनार परस कि मधुर नाम रस नाचे मनार परस कि मधुर नाम रस कि मधुर नाम रस नाचे मनार परस कि मधुर नाम रस नाचे मनार परस कि मधुर नाम रस नाचे मनार परस कि मधुर नाम रस। जय जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। सहज कंठरे सुंदर कीर्तन परिवेशन कले भावार्थ मध्य बहुत गुरुत्वपूर्ण थिला एवं मधुर स्वर मध्य थिला। आपन ठाकुर मंगल करंतु। तापर भजन कीर्तन हमर सरी जाइछि। एबे हमर आलोचनार पर्व आलोचना रे हमर दुई जन विशिष्ट व्यक्ति जामशेदपुर जन भाई अछंती एवं सिलीगुड़ी जन भाई अछंती। जामशेदपुर हमर आनंद कुमार सिन्हा भाई अछंती अंजू भाई एवं सिलीगुड़ी अछंती अजय कुमार भौमिक भाई दुई जन जाक हमर सहप्रतिनिधि की एवं ठाकुरଙ୍କର जो कथा अछि जे विशेष भाव रे जे भक्ति मनुष्य को भक्ति आनी दे ज्ञान ज्ञान आनी दे सर्वभूतरे आत्म आत्मज्ञान आत्मज्ञान सर्वभूतरे जेतेबेले मनुष्य आत्मज्ञान आसे सेतेबेले आसे अहिंसा आ अहिंसा आसे प्रेम मनुष्य जोटार से अधिकार हो पारिबो। तेणु मनुष्य जेतेबेले अहिंसा आसे प्रेमटा ही सबू। ठाकुर कहले जे जदि लोभ करते हुए गुरु चरण लोभ करता है आउ जदि अहंकार करता है आमी जे परम पितार संतान विशेष भाव मोर कहबार नहीं। आज आमर आनंद भाई जो अंजू भाई जे जामशेदपुर अछंती मु तांको विषय रे सम्यक सुनिछि। आमर ज्योति भाई कहउथले मोर विशेष भाव अनुरोध भाई तांकर हिंदी भाषा रे जेभली भाव तांकर अनुभूति किभली ठाकुर दर्शनती जीवन रे किभली पाइछंती ठाकुर को किभली तो उपलब्धि करि पारंती आमु जदि शेयर करंते आमे उपकृत हबु। कारण बहु जगह बहु गोटे ठाकुर भाषा बही पढ़िबा जानिबा एटा तो सब प्राय मासे 2 मास हला आलोचना चली निजर अनुभूति कथा दिव्य अनुभूति कथा जहाँ अनुभव करछंती आमको शेयर करिवे। प्रथमे आमको 2 जन जाक भितर आमे टाइम वर्तमान हे गला 11:30 ये आधा घंटा भितर आधा हाफ एन आवर वार्ता पर्यंत आप बोल सकते हैं प्लस माइनस 5 मिनट हो सकता है। इसके बाद 12 के बाद अजय भाई आलोचना करेंगे। अभी हम आनंद सिन्हा को रिक्वेस्ट करता हूँ जीवन का ठाकुर जी के बारे में हम सबको कुछ बोलने के आनंद भाई। हेलो हेलो बोलिए बोलिए ठीक है। जय गुरु दादा। हेलो बोल सकते हैं। हेलो
हाँ आप बोल सकते हैं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, परमराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा जी, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा जी, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा जी, पूजनीय श्री श्री बबाईदा जी, पूजनीय श्री श्री अविंदा जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित श्रद्धेय ऋत्विक देवतागण, पूत पंजाधारी कर्मीगण, दादाओं माताओं, छोटे छोटे बच्चों, सभी को यथायोग्य स्थान पर मेरा प्रेम भरा प्रणाम और जय गुरु। मैं आनंद कुमार मेरा नाम हुआ, ऐसे डाक नाम मेरा संजू है, संजू नाम से ही लोग मुझे जानते हैं। मैं टाटा नगर जमशेदपुर का रहने वाला हूं और मेरी दीक्षा 37 साल की उम्र में हुई। तो 37 साल की उम्र के बाद की बात तो मैं बाद में बताऊंगा, जब दीक्षा लिए ठाकुर जी के शरण में गए तो क्या हुआ, कैसे हुआ। उसके पहले मैं अपने पूर्व जीवन जो ठाकुर जी के बिना मैं जीवन जी रहा था उसके बारे में कुछ बात बोलता हूँ। मैं 13 साल की उम्र से ही व्यापार कर रहा था, व्यापार कर रहा हूँ आज भी, और 13 वर्ष की उम्र से ही शराब का सेवन करता था। धीरे धीरे नशा के गुट में समाता चला गया। 18-19 की उम्र तक होते होते भांग, गांजा, सिगरेट, पान, तुलसी, रजनीगंधा, सभी प्रकार का जितना तमाम नशा का सामान है मेरा प्रतिदिन का आहार हो गया। खाना 100 ग्राम होता था तो नशा 1 किलो होता था, और 365 दिन मेरा नशा का कार्यक्रम चलता था। किसी भी दिन में बगैर नशा का नहीं रहता था। चूंकि हम लोग बिहारी हैं, हम लोग घर में छठ का बहुत बड़ा मान्यता दिया जाता है, तो उस दिन दारू नहीं पिया जाता है, तो भी भांग मुनक्का गांजा खा के ही सोते थे। मतलब एक तरह से मुझे ये दिमाग में बैठ गया था कि बगैर नशा का हम नहीं जी सकते। इसी प्रकार से जीवन चल रहा था। 37 वर्ष की आयु में मेरे एक दोस्त श्रद्धेय बड़े लालदा ने एक विजय महापात्रो, श्रद्धेय विजय महापात्रो दा को मेरे पास मिलाए, जो स्वस्थैनी व्रतधारी गुरु भाई थे। और एक बात बता दूं आपको पहले कि मैं शराब के साथ साथ 7 दिन हमारे घर में मांसाहार होता था। मीट अलग बनता था मेरे लिए, मुर्गा अलग बनता था, बच्ची लोग के लिए मछली, पत्नी के लिए, तीनों तरह का व्यंजन 250-250 ग्राम बने, लेकिन बने डेली। और शराब की ऐसी व्यवस्था थी दादा कि 12 बजे 1 बजे रात में भी अगर हमको दरकार होने से, हम फोन मारने से, मेरे सामने में जो बार दुकान है साइकिल से स्टाफ को देके भेज देता था, कभी ना नहीं बोलता था। मैंने 24 आवर्स का हम उसका कस्टमर थे। चल रहा था इसी तरह दिन दुनिया। उसी बीच में बड़े लाल दा जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे साथ व्यापार में जुड़े हुए थे, उनके बगल में एक श्रद्धेय विजय महापात्रो दा बाहर से कहीं आके शिफ्ट किए, और वो ठाकुर जी का दीक्षा लिए हुए थे। दीक्षा ही नहीं बल्कि स्वस्थैनी भी लिए हुए थे। हम लोग तो उस समय नहीं जानते थे स्वस्थैनी वगैरह क्या होता है। तो वो विजयदा को लेकर के मेरे पास में आए। जब विजयदा को मेरे पास में लेके आए तो, और विजयदा देखिए स्वस्थैनी लेकर के भी गांजा पीते थे। ये पता नहीं क्या चक्कर था, मालूम नहीं। खैर एनीवे, तो जब विजयदा को मेरे पास लेके आए तो विजयदा मेरे ऑफिस में बैठ के गांजा का सेवन करते थे, और हम दारू पी पी के उनका ठाकुर जी का बात सुनते थे। 1 दिन सुने, 2 दिन सुने, 5 दिन सुने, 10 दिन सुने, और हर बात को हम काटते जाते, क्योंकि हम नास्तिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। 37 साल की उम्र तक एक अगरबत्ती भी नहीं जलाए थे, भगवान से कुछ लेना देना था नहीं, अपना दिन दुनिया में मस्त रहने वाले आदमी थे हम। तो उनकी बात को कलयुग के बात के हिसाब से तर्क दे दे के उसको काटते थे। और वो बेचारा जब नहीं सकता था मेरे से, क्योंकि शराबी आदमी से कोई सकता नहीं, उसका तर्क उल्टा सीधा रहता है, तो एक ही बात बोलता था कि दादा एक बार मोहनदास से मिल लीजिए। श्रद्धेय मोहनलाल अग्रवाल दा यहाँ के सब प्रति ऋत्विक हैं टाटा नगर के, और सत्संग भैया टाटा नगर के आज भी इंचार्ज हैं। इसी तरह से 2-4-10 दिन वो खूब ठाकुर जी का बात बोला, हम भी सुने, लेकिन मेरा मन एकदम बहुत व्याकुल हो गया कि इसको कैसे भगाएं यहाँ से। जब आता है तब ठाकुर ठाकुर करता है। तो एक दिन हम बड़े लाल दा को बोले कि यार एक काम करना, कल से इसको मत लाना बाबू, भगवान का बात बोलता है, अच्छा बात बोलता है, मेरे से बेकार गाली उली निकल जाएगा, खराब लगेगा बेचारे को, मत लाना कल से उसको। लेकिन फिर भी वो विजयदा आना नहीं छोड़े। अब इसके पीछे ठाकुर जी क्या दया थी तो बोल पाना मुश्किल है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता था उस समय कि उसको वहां पर बैठ के गांजा पीने मिल जा रहा है, चाय का व्यवस्था मिल जा रहा है, पान मिल जा रहा है, रजनीगंधा तुलसी मिल जा रहा है, बेचारा डेली भागे भागे चले आता था। फिर ऐसा करते करते एक दिन विश्वकर्मा पूजा आया। चूंकि हमारा चनाचूर और बिस्कुट का फैक्ट्री था, वहां 35 आदमी काम करते थे। तो विश्वकर्मा पूजा का जब आयोजन हुआ तो ठाकुर जी से जुड़ने के पहले जो हम विश्वकर्मा पूजा का महत्व जानते थे कि सुबह से बॉक्स बजाना है, पूरा दम भर दारू पीना है, पिलाना है, नाचना है, गाना है, दैट्स कॉल्ड विश्वकर्मा पूजा।
लेकिन श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी से जुड़ के मेरे को पता चला कि विश्वकर्मा पूजा का मतलब होता है विशेष रूप से किए गए कर्म को ही विश्वकर्मा कहते हैं। उस दिन पता चला जिस दिन ठाकुर जी से जुड़े, किसी भी काम को आप अगर विशेष रूप से करते हैं दैट्स कॉल्ड, वहां विश्वकर्मा भगवान का आपके ऊपर में आशीर्वाद है। तो उस दिन विश्वकर्मा पूजा था, सुबह से धमा चौकड़ी चल रहा था, शराब का दौर चल रहा था। इस बीच में करीब 6:30-7 बजे श्रद्धेय विजयदा पहुंचे। अब चूंकि विश्वकर्मा पूजा था तो बहुत सारे ग्राहकों का आना जाना, घर वालों का आना जाना, रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था। तो विजयदा को गांजा पीने में सुविधा हो रही थी। तो मेरे को बोले कि दादा मेरा कैसे होगा? तो हम लोग बोले चलो यार मैदान में पी के आते हैं गांजा। तो मेरे घर के फैक्ट्री के सामने में, फैक्ट्री और घर एक जगह ही था, सामने में एक मैदान है, वहां हम लोग तीनों दोस्त चले गए और एक एक सिगरेट भर के गांजा वहां फिर पिए। और जैसे विजयदा गांजा पीना शुरू की और खत्म हुआ, फिर ठाकुर जी का बात मैदान में चालू कर दिए। क्या मालूम उस समय मेरे मन में क्या सवार हुआ, मेरे को नहीं पता। हम उसको बोले कि यार एक काम कर चलो तो कौन तेरा मोहन दा है, उससे मिल करके ठाकुर जी का चैप्टर क्लोज कर देते, बहुत ठाकुर ठाकुर कर लिया तुम। तो बहुत खुश हुआ, बोला हाँ दादा सही में चलिएगा? बोला चलिएगा नहीं, यहीं से चलो, अभी हम घर नहीं जाएगा, तेरा मोहन दा के पास जाएगा। तो बोला एक गाड़ी में 3 आदमी कैसे जाएंगे दादा? तो हम बोले जाओ फैक्ट्री एक और गाड़ी लेके आओ। जब वो लोग मेरे घर से, मेरे मैदान से जब घर आया मेरा फैक्ट्री गाड़ी लेने के लिए, तो मैं मन में थोड़ा भयभीत होने लगा कि भाई क्या मालूम कौन होंगे मोहन दा, कौन नहीं होंगे पता नहीं। एक काम करते हैं 2-3 पैक और मार लेते हैं, जो होगा उसको देखा जाएगा। और मैदान के सामने में ही हमारा बार था, जाके फटाफट 2-3 पैक लगाए और एक सिगरेट जला के रोड पे खड़े थे, तब तक ये लोग दोनों पहुंच गए। पहुंचने के बाद में ये लोग गाड़ी में बैठाए और लेके चले गए मोहन दा के पास में। और जब मोहन दा के घर गए तो मैंने सोफा सेट पे व्हाइट धोती कुर्ता पहने हुए, एकदम ललाट चमकता हुआ, 70-75 साल उम्र है, अच्छे देखने में लग रहे थे। तो ये लोग जा करके जैसे ठाकुर जी को प्रणाम करते वैसे प्रणाम किए, और हम थोड़ा बदन हाथ टेढ़ा करके दरवाजे पे ही खड़े थे। नशा में तो पूरा भूत थे। तो श्रद्धेय मोहन दास सामने से बोले कि आइए आइए, आप ही संजू जी हैं? तो मुझे ऐसा लगा कि अरे इनको तो लग रहा मेरे बारे में सब बता दिया गया है। तो हम हाथ जोड़ के बोले प्रणाम चाचा, हम ही संजू हैं। आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। बैठ गया मैं, सामने 3 तो कुर्सी लग गया सोफा के सामने में, तीनों कुर्सी में हम लोग तीनों बैठ गए। श्रद्धेय मोहन दास बोले, पूछे मेरे से कैसे हैं आप? हम बोले दादा हम चाचा हम जैसे भी हैं बिल्कुल मस्त हैं और बहुत आनंद में हैं। लेकिन ये जो विजयदा है पिछला 1-1.5 महीने से ठाकुर 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 करके मेरा दिमाग खराब किया हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि आज मोहन दास से मिलके विजयदा का चैप्टर क्लोज, ठाकुर जी का चैप्टर क्लोज कर देना है। बहुत माथा मेरा खराब हो गया ठाकुर जी से। तो फिर श्रद्धेय मोहन दा बोले, अरे यार क्यों इस लड़का को सत्संग के चक्कर में फंसा रहे हो, ठाकुर के चक्कर में फंसा रहे हो? जीने तो यार इसे अपनी जिंदगी, मस्त जिंदगी जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, स्मोज कर रहा है, क्यों ठाकुर के चक्कर में फंसा रहे हो? तो श्रद्धेय विजयदा बोले कि नहीं नहीं दादा, आप थोड़ा सा ठाकुर जी का बात बोलिए, जाजन कीजिए, थोड़ा ठाकुर जी का जाजन कीजिए। तो ठाकुर जी की दीक्षा बोलिए या ठाकुर जी का बात बोलिए या ठाकुर जी का जाजन बोलिए, मेरे समझ में जो आज तक आया यही है कि ठाकुर जी का दीक्षा मतलब बचना और बढ़ना, तीसरा कुछ भी नहीं है। जो ठाकुर जी का दीक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को बचा नहीं पाया, सुनियंत्रित नहीं कर पाया, और वो जिस भी कर्म क्षेत्र में है अगर उस कर्म क्षेत्र को वृद्धि प्राप्त नहीं कर पाया, दैट मीन्स उसके अंदर में ठाकुर जी का ठ भी नहीं समाया है। ये मेरा अपना सोच है, हर व्यक्ति का अपना अलग अलग अनुभूति होता है। तो श्रद्धेय मोहन दा मेरे से मेरे जीवन संबंधित 2-3 प्रश्न मेरे से किए, और मैं जिस कलयुग में जी रहा था उस कलयुग के हिसाब से श्रद्धेय मोहन दा को उसका जवाब दिया। और मेरे जवाब सुनने के बाद में उसी प्रश्न का जवाब श्रद्धेय मोहन दा ने सत्संग की भावधारा से जोड़ करके, ठाकुर जी की भावधारा से जोड़ के मेरे को बतलाया। तो वो जो सत्संग की भावधारा बतलाए, ठाकुर जी की भावधारा से जोड़ के बतलाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मैंने उसके पहले कभी ये बात सुना ही नहीं था। तो मेरा थोड़ा उनके प्रति श्रद्धा हो गया, थोड़ा मेरे को अच्छे लगने लगे, अरे बड़ी ज्ञान का बात बताए भाई ये। तब फिर वो मेरे को इशारा करके पूछे कि एक बात पूछे तुमसे? हम बोले हाँ पूछिए। तब तक उनके बात सुन के हम थोड़ा उनके प्रति श्रद्धान्वित हुए, तब चाचा से उनको दादा बोलने लगे थे। हम बोले हाँ दादा पूछिए। तो हाथ का इशारा करके पूछते हैं कि दिन भर में कितना बोतल पीते हो? अब पीने का तो कोई लिमिटेशन था ही नहीं, डेली में सुबह उठ के अपना बोतल गिनता था तो घृणा हो जाती थी कि कल से दारू नहीं पियेंगे, आज से दारू नहीं पियेंगे। लेकिन फिर कल सुबह बोतल उतना ही जमा होता था जितना आज देखे रहते थे।
तो घबरा के शर्म से हम बोले बुजुर्ग आदमी है, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। हम बोले दादा हम 5-6 बोतल दारू पीते हैं, 5-6 बोतल बियर पीते हैं। तो दादा बोले क्या खास बात है यार, तुम जितना डेली शराब पीते हो मस्त दबा के पीना, तेरा जब कोटा पूरा हो जाएगा ठाकुर जी का नाम पे एक बोतल अलग से जरूर पीना। अरे मेरे को तो लगा साला लॉटरी निकल गई है। ये लोग बोलते थे दारू छोड़ना होगा, गांजा छोड़ना होगा, सिगरेट छोड़ना होगा, मांस मछली छोड़ना होगा। ये बाबा जी तो बोल रहे हैं कि एक बोतल दबा के पीना, बढ़ा के पीना। हम तुरंत वो लोग की तरफ से कुर्सी हटा के मोहनदा की तरफ लगा दी कि भाई टीम का आदमी है, पीने बोल रहा है, चलेगा, ये आदमी ठीक है। इतना होने के बाद में तब मोहनदा मेरे को बोले कि अब तो दीक्षा ले सकते हो ना। हम बोले हाँ दादा, दारू पीने मिलेगा तो कुछ भी कर सकते हैं, दारू छोड़ के कुछ नहीं होगा। बोले हम तो दारू के लिए तुमको खुला छूट दे दिए, तुम जितना पीता है पीना, और तेरा कोटा पूरा होने के बाद में ठाकुर जी का नाम पे एक बोतल पीना। हम बोले ठीक है दादा, हो जाएगा। तो बोले लेकिन एक बात और सुनो, जैसे तुम्हें दारू पीने की तलब होती है तो तुम पीते हो? हम बोले हाँ बिल्कुल पीते हैं। वैसे ठाकुर जी का भी जो नियम है, विधान है, उसको भी समय पे पालन करना होगा। तो हम बोले काम कीजिए, तो पहले विधान बता दीजिए, नियम बता दीजिए, तभी आगे बढ़ेंगे। बोले ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। अब हम 37 साल तक जानते नहीं थे कि ब्रह्म मुहूर्त किसको बोलता है। बोले उषा काल में ध्यान करना होगा, निशा काल में ध्यान करना होगा, इष्टवृत्ति करना होगा, दोनों वेला प्रार्थना करना होगा। सब मेरे लिए नया चीज था। हम बोले भाई ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? मैं 12-1 बजे रात तक दारू पी के सोता था, सुबह 10-11 बजे उठता था, ये मेरा एकदम रूटीन था ये। बोले ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? बोले सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। हम बोले चलो उठ जाएंगे, कोई बात नहीं, बहुत बड़ा बात नहीं है। नाम ध्यान करना पड़ेगा, नाम ध्यान के बारे में बताया, ऐसे करना पड़ेगा। फिर बोले इष्टवृत्ति करना पड़ेगा। बोले इष्टवृत्ति क्या है? तो ऐसे पैसा रख के ठाकुर जी को मंत्र बोल करके, अर्घ रख करके ठाकुर जी को निवेदन करना पड़ता है। चलो वो भी हो जाएगा। तो दोनों बेला प्रार्थना करनी होगी। हम बोले दोनों बेला मतलब? बोले सुबह और शाम। हम बोले कब? बोले सूर्यास्त और सूर्योदय के समय। हम बोले टाइम क्या है दादा? बोले सुबह वही 5:30-6 बजे के बीच में रहता है, और शाम में भी जो है 5 से 6 के बीच में रहता है। तो हम बोले दादा तब प्रोग्राम कैंसिल कीजिए, हमसे नहीं हो पाएगा। बोले अब क्या हुआ तेरे को? हम बोले भाई शाम को 5-6 बजे तक आदमी प्रार्थना ही करते रहेगा तो दारू कब पीना शुरू करेगा? हमको तो सुबह से दारू चाहिए। तो बोले तो एक काम करिए, तुम दारू पी करके ही प्रार्थना करना, लेकिन प्रार्थना भी जरूर करना। इतने सारे तमाम कंडीशनों के बाद में मेरी दीक्षा 21 नवंबर 2006 मंगलवार को, मैं, मेरी पत्नी और मेरी बड़ी बेटी, तीनों जन हम लोग दीक्षा लिए। दीक्षा उस दिन हुआ था, इसलिए उस दिन हम लोग घर में शराब उराब नहीं मंगाए, मीट मछली भी नहीं बनाए कि चलो आज दीक्षा हुआ है ठाकुर जी का, आज ये सब नहीं खाते हैं। अपने ऑफिस में बैठ करके ठाकुर जी का कैसेट सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, नाम कर रहे हैं, बस चल रहा है अंदर में सब ठाकुर जी का ही प्रोग्राम। ऐसा करते करते रात को 9-9:30 बजे जब ऑफिस से घर में आए, पैंट शर्ट खोल करके खूंटी में टांग दिए, तो फिर मेरे को एक बात याद आया कि अरे यार डेली 10-12 बोतल पीते थे, एक बोतल बियर मंगाते हैं, पियेंगे, 2 रोटी खाएंगे, सो जाएंगे। बोल के हम खूंटी में पॉकेट में हाथ देने जब पैसे के लिए निकालने गए, तो श्रद्धेय मोहनदा की एक बात याद है कि जब भी कोई आसक्ति प्रवृत्ति तुमको खींचेगा, तो पहले ठाकुर जी का 15-20 मिनट नाम ध्यान जरूर कर लेना, फिर तेरे जी में जो आएगा तुम दबा के करना, लेकिन नाम ध्यान करने के बाद करना। तो मैं सोचा भाई मुझे तो 12-1 बजे रात में भी शराब के लिए असुविधा नहीं होता है, क्यों नहीं पहले थोड़ा ठाकुर जी का नाम ध्यान ही कर लिया। सोफा में बैठ के हम नाम ध्यान करने लगे, 10 मिनट किए कि आधा घंटा किए, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन जब हम ध्यान से उठे तो हम पत्नी को बोले, जो मेरे बगल में रूम में बैठ के बच्ची को पढ़ा रही थी, हम बोले काम करो, खाना निकालो। तो उसको कान पे विश्वास नहीं हुआ कि सही में खाना निकालने बोल रहा है, कुछ तो लिया दिया नहीं आज। बोले सही में निकाल दें? हम बोले जो बना है फटाफट निकालो, रोटी सब्जी जो है। तो 2 रोटी सब्जी जो ही बना होगा उस दिन आया, खाए, खा के आके जब 10-10:30 बजे अपने बेड पे सोने के लिए आए, तब जो आदमी 1 बजे तक दारू पी के नहीं सोता था, 10-10:30 बजे कैसे सो जाएगा? छटपट कचमच कर रहे हैं। तो फिर मोहनदा की बात याद आई कि भाई जब भी तुमको वृत्ति प्रवृत्ति टानेगा, आसक्ति खींचेगा, ठाकुर जी का नाम ध्यान जरूर कर लेना। तो मैं तकिया पे लेटे लेटे नाम करने लग गया। नाम करते 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 कब जो हम नींद के आगोश में समा गए मेरे को याद नहीं। मेरा जब आंख खुला तो टेलीफोन का घंटी बज रहा था, और जब हम टेलीफोन के घंटी मोबाइल पर हाथ दिए तो देख रहे हैं उसमें मोहनदा का नाम है। हम बोले अभी रात में बूढ़ा बाबा को क्या हो गया? फोन उठाया, हम बोले अरे दादा इतना रात को काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं?
तो ले रात नहीं, उठो, सुबह 4 बज रहा है। मैं मोबाइल में जब टाइम देखा तो 4:05 हो रहा था। मैं बहुत हतप्रभ रह गया कि अरे पूरा रात हम बगैर शराब का नशा का सो गए। इतना नाम में शक्ति है, इतना नाम में ताकत है। मैं उस समय उठा और उस दिन से आज तक मैंने नाम को इस तरह से करने लगा, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते घूमते फिरते ईच एंड एवरी टाइम नाम 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 नाम। और नाम की अपार शक्ति है जो मेरा पहला दिन से शराब से मुक्त करा दिया जीवन को। और आज ठाकुर जी की विशेष दया है दादा, ये 14 साल मेरा दीक्षा का हुआ है। मैं इस यूनिवर्सिटी का 14 साल का विद्यार्थी हूँ मात्र। ठाकुर जी के दया से, पुष्पा दादा के आशीर्वाद से, पूज्य दादा जी की प्रेरणा से, प्रेम से मेरा शराब तो छोड़िए, सिगरेट, गांजा, भांग, रजनीगंधा, पान पराग, इवन चाय तक छूट गया। ये मिरेकल है मेरे लिए। मेरे को कोई वैद, हकीम और वकील का ताकत नहीं था कि कोई तंत्र मंत्र जन करके भी शराब छुड़वा सकता था। लेकिन ठाकुर जी का नाम में वो अपार शक्ति मिला कि मेरे को, मैं 13 साल की उम्र से 37 साल तक एक दिन जो आदमी बगैर नशा का नहीं सोया हो, और 21 नवंबर 2006 को दीक्षा लेने के बाद में आज 2020 में आपसे बात हो रही है, कभी नशा के तरफ में आसक्ति ही नहीं आया हो, कभी याद ही नहीं आया हो कि मैं शराब भी पीता था। और मैं नहीं, मेरे साथ 7-8 छोकरों को बैठा के पिलाता था। कभी कभी कोई प्रकार का आसक्ति नहीं आया, ड्यू टू नाम। शराब से मुक्ति मिला। 2 दिन बाद वो विजय दा जो हमको जाजन करके ले गए थे मोहन दा के पास में, वो मेरे घर पे आए। जैसे घुसे बोले जय गुरु दादा। हम बोले जय गुरु जय गुरु। तो बोले तब दादा कितना पैक तक पहुंचे? बोला 2 दिन हो गया दारू नहीं पिए यार। हम मानेंगे ही नहीं, बोल रहा आप और दारू नहीं पिए, हम मान ही नहीं सकते हैं। तो फिर हम बोले जाओ वाइफ से पूछ लो। पत्नी के पास किया, पत्नी से पूछा, बोले नहीं 2 दिन से तो दारू नहीं पिए दादा। आप बिलीव नहीं करेंगे दादा, वो विजयदा किचन से आकर के मेरे घर में जो ठाकुर जी का स्थान है, नहीं अभी तो मंदिर बना लिए ठाकुर जी का, छोटा सा अपना घर दे दिए ठाकुर जी को। उस समय एक छोटा सा फोटो रखा हुआ था सभी देवी देवताओं के बीच में। तो ठाकुर जी को प्रणाम करके वो मेरे तरफ देख के बोलते हैं विजयदा, दादा हम आज से गांजा नहीं पिएंगे। मेरा तो बदन का पूरा रोआ खड़ा हो गया। ठाकुर जी की वो बात जो सत्यानुसरण में लिखी हुई है कि दूसरे की मंगल कामना ही अपने मंगल की प्रस्तुति है, एकदम इस लड़के पे सटीक बैठ गया। ये आदमी मेरा शराब छूटने के लिए, मेरा जीवन कैसे अच्छा होगा उसके लिए इतना प्रयास किया, इतना गाली सुन के भी मेरे को ठाकुर जी के पास लेके गया, जुड़वाया, मोहनदास से बात कराया, ठाकुर जी से युक्त कराया माध्यम के थ्रू। उस मेरे शराब छूटने में इसका गांजा छूटना लिखा हुआ था, शायद इसको भी नहीं मालूम था। इसलिए ठाकुर जी का लाइन मेरे को बहुत अच्छा लगा कि दूसरे की मंगल कामना ही अपने मंगल की प्रसूति है। दैट मीन्स सत्यानुसरण में जो लिखा है, सत्य अनुसरण, सत्य का अनुसरण करना ही सत्यानुसरण है। उसको जो लोग न्यूज़पेपर की तरह पढ़ेंगे वो ठाकुर जी को कभी जीवन में नहीं समझ पाएंगे। एक एक लाइन में एक एक कहानी लिखा जा सकता है। फिर विजयदा उस दिन से गांजा छोड़ दिए। मोहन दा डेली 4 बजे सुबह मेरे को उठाते, नाम ध्यान कराते, स्मृति करवाते, प्रार्थना करवाते। ऐसा करते करते एक दिन मोहन दा फोन किए, ए उठो स्मृति किया। तो मेरे को स्मृति को लेकर थोड़ा खटक रहा था मन में, क्योंकि देखिए हम लोग कलयुग में जी रहे थे ना, तो कलयुग में पैसा ही सबसे प्रिय है। तो पैसा से स्मृति होता था। हालांकि हम 1 रुपये से स्मृति करते थे, संकल्प हमारा 1 रुपये से था। और जिस समय हम 1 रुपये से स्मृति करते थे तब हम मोहन दा को बोले, अच्छा मोहन दा एक बात बताइए, ये जो हम लोग 40-40 रुपया करके 120 रुपया महीना में भेजते हैं, इसमें से कितना % कमीशन आपको मिलता है लौट करके? तो मोहन दा बहुत गुस्सा हुए, ऐसा बात क्यों बोल रहा है? हम लोग बोलेगा नहीं, डेली सुबह उठाते हैं एक ही बात बोलते हैं, स्मृति किया स्मृति किया। अरे स्मृति तो पैसा से होता है, कुछ तो चक्कर जरूर है, कुछ तो हिसाब किताब आप लोग का होगा इसमें, तबे ना आप सुबह उठ के स्मृति किया बोलते हैं। बोले इन सब चीजों को समझने के लिए तुमको मेरे साथ देवघर जाना होगा। तो हम बोले दादा ठीक है, इस बार जब देवघर जाइएगा तो हमको ले चलिएगा, हमको सब चीज समझना है, चक्कर क्या है। ये उस समय की बात है जब 1 रुपये से मैं स्मृति करता था। आज ठाकुर जी की दया से, दादा के आशीर्वाद से, पूजनीय भाई दादा जी की प्रेरणा से मैं 120 रुपये से स्मृति करता हूँ दादा, तो भी मुझे लगता है कि मैं ठाकुर जी के लिए कम करता हूँ, छलता हूँ ठाकुर जी को। क्योंकि इष्ट वृत्ति जो है सामर्थ्य जो है, जब मैं 1 रुपये से करता था तो भी मेरी सामर्थ्यता मुझे पता था, और आज मैं 120 रुपये से करता हूँ तो भी मेरी सामर्थ्यता मुझे पता है। लेकिन मैं कभी किसी लोभ और लालच में स्मृति को नहीं बढ़ाया था। जब मैं 1 रुपया से 2 रुपया, 2 रुपये से 5 रुपया, 5 रुपये से 10 रुपया स्मृति करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि ठाकुर जी को छल रहा हूँ, ठग रहा हूँ।
कोई दो ठो दोस्त लुच्चा लफंगा रोड में मिल जाता था, भैया रजनीगंधा नहीं खिलाइएगा, दो ठो पुड़िया खिलाइए ना। कोई मिल गया, भाई आज दारू नहीं पिलाइएगा, उसको दारू पिला दिया तो 200 रुपया वहीं बलि चढ़ गया। लेकिन जिस ठाकुर जी को पकड़ के मेरा जीवन इतना सुंदर हो रहा है, इतना अच्छा हो रहा है, उस ठाकुर जी को हम 10 रुपया 2 रुपया 1 रुपया से स्टीवृत्ति कर रहे हैं, ठग रहे ठाकुर जी को। हमको ऐसा मन में भाव आता था, फीलिंग आता था कि नहीं, ऐसा करते करते धीरे 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 क्रमशः बढ़ाते चला गया। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सामर्थ्य जो है मैं जैसे जैसे बढ़ाऊंगा वैसे वैसे ठाकुर जी मुझे इसका 1000 गुना बढ़ाते चले जाएंगे। और आज प्रत्यक्ष रूप से मैं देख रहा हूँ कि उसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है। ठाकुर जी बोले हैं कि तुम 3 बेला में जितना खाते हो उसका 1 बेला का जो भोग का अर्घ होगा वो मेरा मिनिमम। ऐसा ठाकुर जी का किताब में मैं लिखा, सुना हूँ, पढ़ा हूँ, देखा हूँ। तो कहीं पर पैसा का कोई बात नहीं है दादा, इसमें तो जो लोग मान लीजिए 20 रुपया का चावल में 3 बेला खा रहे हैं उनके लिए 7 रुपया स्टीवृत्ति काफी है, और जो 200 रुपया का दिन भर में खा रहे हैं उनके लिए 70 रुपया मिनिमम स्टीवृत्ति है। खैर एनीवे अपने अपने भाव पर विचार है, भक्त और भगवान के बीच की बात है, इसमें कुछ बोलना नहीं आगे। खैर मैं उनके साथ में एक बार देवघर, पहला बार जब देवघर गया, और देवघर जाने के बाद में जब प्रातःकालीन विनती थोड़ा आप वीडियो बंद कर दीजिए और ऑडियो को आपका जो माइक्रोफोन थोड़ा दूर से रख दीजिए, अच्छा होगा। तो जो कनेक्शन इंटरनेट थोड़ा ट्रबल होता है। आप वीडियो बंद कर दीजिए, ऑडियो को थोड़ा दूर से रखिए, अच्छा होगा। ओके 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 वीडियो बंद कर दीजिए, खाली डायरेक्ट ऑडियो में बोलिए। हेलो, हाँ ठीक है, वीडियो ठीक है, बंद हुआ? बोलिए। हाँ ठीक है, अच्छा। वीडियो बंद हुआ, थोड़ा माइक्रोफोन थोड़ा दूर से रखना, अच्छा होगा। ओके ओके ओके। तो फिर जब हम प्रथम बार जब हम देवघर आश्रम गए और पूजनीय बवाईदास जी का प्रार्थना में जो दर्शन हुआ, उनका दिव्य स्वरूप देखकर मतलब मैं तो सम्मोहित हो गया वहां कि इतना भी सम्मोहनकारी कोई व्यक्ति हो सकता है क्या। ये इंसान के रूप में साक्षात भगवान है और कुछ नहीं, नर के रूप में नारायण है। और उस दिन उसी पल से मैं केवल सत्संग का हो गया। प्रार्थना के बाद श्रद्धेय मोहनलाल दा बोले कि चलो बरदा जी के बाड़ी, वहां तुमको प्रणाम करा देते हैं। बरदा जी के जब गेट के पास में पहुंचे तो ग्रीन पर्दा के बगल में पूजनीय बवाईदास जी बैठते थे, वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। बोले चलो, तो हम जो है सो पूजनीय श्रद्धेय मोहन दा को भगा रहे हैं कि नहीं नहीं जाइए, हम नहीं जाएंगे। और मोहन दा मेरे को बुला रहे, लेकिन हम नहीं गए। मेरे को ऐसा अंदर से लगता था कि मेरे जैसा पापी आदमी को इतना दिव्य पुरुष को प्रणाम नहीं करना चाहिए, हम उस लायक नहीं कि हम इनको प्रणाम करें। मेरी ऐसी अंदर से आत्मा धिक्कार रहा था, वृत्ति प्रवृत्ति से मैं ओतप्रोत था कि मैं इनको प्रणाम नहीं करूंगा। और वाकई उस दिन हम सुबह में प्रणाम करने उनको नहीं, और गाछ के पीछे लेकिन खड़ा होकर उनको टुकुर टुकुर देख रहे थे, क्योंकि देखने में मेरे को बहुत अच्छे लग रहे थे। सम्मोहनकारी, दिव्यता, सौम्यता, मिसाल नहीं था कुछ भी। मोहनदा अंदर चले गए। दोपहर में सेंटेनरी बिल्डिंग में उनको रूम मिला था। मेरे को बहुत सारा बात डांटे, बहुत बहुत डांटे। मेरे को बहुत खराब भी लगा कि जो आदमी ठाकुर जी के बारे में इतना अच्छा से बोल रहे थे आज मेरे पर गुस्सा हो गया। हाँ, इसी बीच में वो फिर मेरे को फिलैंथ्रोपी ले गए। फिलैंथ्रोपी के ऊपर में जो स्टिविटी जमा होता है वहां पर ले गए। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो जो जमा होने वाला जो स्पॉट है वहां देखे हम 20 काउंटर खुला हुआ है, और 20 काउंटर में 10 से 20 आदमी करके लाइन लगे हुए हैं, जिसमें 18 साल का लड़का भी है और 80 साल का बुजुर्ग भी है, और सब हाथ में पैसा फॉर्म लेके लाइन में इस कदर खड़ा है देने के लिए, जैसे वो देने के लिए व्याकुल है। मुझे उस दिन से मेरे को स्टिविटी पर और कोई प्रश्न। फिर हम जब मोहनदास दोपहर में बहुत डांटे मेरे को, तो हम काला पैंट पीला शर्ट पहन के गए थे, हिप्पी कटिंग बाल था पूरा। लेने के बाद में शाम का प्रार्थना में गए, और प्रार्थना से आने के बाद बोले दादा चलिए अभी हमको प्रणाम करा दीजिए। जब हम वहाँ प्रणाम करने के लिए गए तो प्रणाम हो गया। प्रणाम करने के बाद में तो मेरे को ऐसा लगा कि परम पुरुष लोग का नशा हो गया, जैसे मैं महीने में 2 बार 3 बार करके जाना शुरू कर दिया ठाकुरबाड़ी। डेली रात को टाटा से गाड़ी में बैठता था, सुबह उतरता था 4 बजे देवघर, सुबह शाम प्रार्थना किया, दादा लोग का दर्शन प्रणाम किया, प्रसाद खाया, फिर रात को गाड़ी पकड़ के सुबह चले आता था।
पहला बारी जब हम देवघर गए तो दादा वहां से फोन किए अपने घर पे, भाई आज से मीट मछली नहीं खाई। दूसरी बार जब देवघर गए तो पूजनीय वायदा जी के सामने में गुरु किंकर दा खड़े थे, जिनका उम्र उस समय करीब 70-75 साल होगा उनका। जब हम उनको देखे, वो मेरे जैसा ही पतला दुबला व्यक्ति है, एकदम छड़ी के माफिक खड़ा है, एकदम सीधा डंडा का माफिक, और हम उनको देख करके अपना कमर को ऐसा सीधा कर रहे हैं। फिर 5 मिनट बाद देख रहे हैं हम धीरे धीरे झुक जा रहे हैं, वैसे ही खड़ा है। जब पूजनीय वायदा जी उठ गए तो हम लोगों से पूछे, भाई दादा कौन है? तो ठाकुरबाड़ी के ही लोग बताए कि भाई वो किंकर दा हैं, कुश्ती लिखते हैं, ठाकुर जी का 5 जनरेशन देखे हैं, ठाकुर जी से लेके पूजनीय नवीन दा तक का संग किए। तो मैं अपने आप में बहुत चिंतित हुआ कि भाई ये व्यक्ति शराब नहीं पिए, गांजा नहीं पिए, सिगरेट नहीं पिए, मीट नहीं खाए, मछली नहीं खाए, लहसुन नहीं खाए, प्याज नहीं खाए, तब इस उम्र में डंटा का माफिक खड़े हैं। हम दुनिया का तमाम चीज खा के भी इनको देख के सीधा खड़ा नहीं हो पा रहे। ये अच्छा चीज खाए कि हम अच्छा चीज खाए। और उसी समय अपने घर पे फोन लगाया, भाई कल से मेरा प्याज लहसुन भी बंद। अब इतना बोलना था कि घर में तो पूरा बवाल हो गया, भाई प्याज लहसुन बंद। खैर हम फोन काट दिए। दूसरे दिन जब घर आए तो देखे माँ, पिताजी, दादी, पत्नी, बच्चा सब एकदम बैठा हुआ है, बोर्ड कमेटी का मीटिंग लग गया है, सब ढेर सारा बात, बहुत भक्ति चढ़ गया है, बहुत पुजारी हो गया है, बहुत भगवान गिरी दिखा रहा है, दिस डेट लॉट ऑफ थिंग्स मेरे को सुनने को मिला। सब लोग जब सब कुछ बोले, भाई ठीक है मीट मछली छोड़ दिया था, ठीक है प्याज लहसुन क्यों छोड़ दिया, बिजनेस करता है, सप्ताह में 5 दिन बाहर जाना पड़ता है, सब बहुत सारा बात बोले। तो सब जब बोल के रुक गए तो हम बोले कि अच्छा आप लोग सब बोल लिए, अब हम एक लाइन बोले। मेरे पिताजी बोले कि हाँ बोलो, क्या बोलना चाहता है। हम बोले देखिए, मेरे को अगर अलग से भुजिया भी ना बना के मिलेगा तो भी ठीक है, अलग से सब्जी बना के मिलेगा तो भी ठीक है, नहीं मिलेगा तो हम पानी रोटी खा लेंगे, लेकिन प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, बोले और जाके अपने ऑफिस में बैठ गए। मैं बताया 21 नवंबर 2006 को हमारी दीक्षा हुई और 18 मार्च 2007, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च, 3 महीने के अंदर में मैं और मेरी पत्नी देवघर जाके पूज्य वायदा जी के माध्यम से स्वस्थनी व्रत ग्रहण की। और वो दिन मेरे जीवन का सबसे सौभाग्यशाली दिन साबित हुआ। जिस दिव्य पुरुष को अभी तक दूर से निहारता था, उन्हें एक हाथ की दूरी से देखने का और समझने का, महसूस करने का मौका मिला। वो ग्रीन पर्दा के पीछे जो छोटा सा रूम है, उसमें हमारा स्वस्थनी हुआ था और पूजनीय वायदा जी के एक हाथ के बगल में मैं बैठा था। स्वस्थनी में पूजनीय वायदा जी क्या बोले मेरे को आज भी याद नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ उतना देर सिर्फ उनका चेहरा ही देखते रह गए। स्वस्थनी व्रत हो गया। वहां से आने के बाद जब 6 महीना बीता, मार्च में हमारा स्वस्थनी हुआ 2007 में। उसी वर्ष दुर्गा पूजा के टाइम में मेरे माता पिता मेरे को बोल रहे हैं कि बेटा इस बार अगर देवघर जाना तो हम लोग को भी ले चलना। हम लोग भी स्वस्थ नहीं हुए। मेरा रोंगटा खड़ा हो गया। ठाकुर जी का सत्यानुसरण को बात याद आ गया जो ठाकुर जी लिख रहे हैं कि तुम अगर सत्य बनते हो तो तुमको देखकर हजार हजार लोग सत्य हो जाएंगे, और तुम अगर असत्य बनते हो तो तुम्हारी दुर्दशा में संवेदना प्रकाश करने वाला कोई नहीं। मैं अपने माता पिता को लेकर के गया और ठाकुर जी की विशेष दया हुई। पूजनीय वायदा जी स्वयं अपने हाथ से मेरे माता पिता को भी स्वस्थनी व्रत दी। जो मेरे माता पिता लहसुन प्याज छोड़ने का इतना विरोध कर रहे थे, वो स्वयं आग्रह करके स्वस्थनी व्रत ग्रहण किए पूजनीय वायदा जी के माध्यम से। मेरा दोनों भाई की पत्नी, बच्चे सभी दीक्षा लिए। एक भाई का वाइफ स्वस्थनी व्रत ग्रहण की। जिस घर से दीक्षा के पूर्व पूजा का थाली, बर्तन, दिया बत्ती फेंका चुका था, इस घर में और पूजा करके कोई फायदा नहीं है, इस घर में तो भगवान है ही नहीं है। जिस घर में सुबह आदमी उठे तो गांजा पिए और रात को सोए तो गिलास में दारू पड़ा रहे, उस घर में पूजा करके क्या फायदा है। ठाकुर जी की दीक्षा लेने के बाद आज उसी घर में दोनों बेला नियमित रूप से प्रार्थना होती है। प्रार्थना के बाद छोटे से बड़ों को प्रणाम कराया जाता है, और प्रार्थना ही नहीं, माइक और ट्रम्पेट लगा के प्रार्थना होती है। और घर में ही ठाकुर जी विराजमान हो गए, धर्मराज यही स्थापित हो गया मेरे घर में। मुझे नहीं लगता कि मेरे को कहीं जा करके ठाकुर जी का दर्शन करना पड़ता। मेरे घर में ठाकुर जी 24 आवर्स रहते हैं। इसलिए जो लोग ये सोच रहे होते हैं, सोचते हैं कि हम लोग कलयुग में जी रहे हैं, वो भूल जाएं कि कलयुग में जी रहे हैं। मेरे हिसाब से सतयुग का प्रारंभ 1888 ईस्वी में हो चुका है दादा। जिस दिन ठाकुर जी का आविर्भाव हुआ उस दिन सतयुग धराधाम पे आ चुका है। 2050 में आसमान से टपकने वाला नहीं है। ये 1888 से जो आज 2020 तक जितने सौभाग्यशाली लोग सत्य के साथ जुड़े हैं, सत्संग से जुड़े हैं, ठाकुर जी का अनुयायी बने हैं, वो लोग सब सतयुग में ही जी रहे हैं। मेरे ऑनलाइन सत्संग सुनने वाले के बाहर में कोई अगर कलयुग तांडव कर रहा होगा तो कर रहा होगा, लेकिन जितने लोग अभी हम लोग ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हैं, ये सब सतयुग में ही वास कर रहे हैं। कलयुग आसमान से टपका है नहीं और सतयुग आसमान से टपकेगा नहीं। इसी प्रकार से जैसे जैसे हम लोग जुड़ते चले जाएंगे, एक दिन पूरा भारतवर्ष का पूरा साम्राज्य, वर्ल्ड जो है सतयुग में प्रवेश कर जाएगा।
मेरी तो दीक्षा 37 साल में हुई, मेरा दुर्भाग्य है, लेकिन ठाकुर जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस जन्म में तो लेट से हुआ, अगले जन्म में अगर मेरा जीवन कुकुर जोनी में भी हो तो आपकी छत्र छाया में। ये मनुष्य का एक सौभाग्य है और एक मनुष्य का एक महापुरुष का वाणी है कि मनुष्य के लिए 3 सौभाग्य का पल होता है। पहला, मनुष्य का जन्म होना ही उसके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होता है, जो आज मेरे का मनुष्य जन्म मिला है। दूसरा है मानवीय गरिमाओं का अवलंबन करना, और तीसरा है महामानवों के साथ घनिष्ठता। कौन होते हैं महामानव? परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री वर्धा जी, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा जी, पूजनीय श्री श्री बाबाईदा जी, पूजनीय श्री श्री अविंदा जी। इन जैसे महामानवों के साथ में आपकी जितनी घनिष्ठता बढ़ेगी, जितना प्रेम बढ़ेगा, जितना आप उनका अनुसरण करेंगे, जितना आप उनको लेके अपने जीवन में चलेंगे, जैसा भी कीचड़ में जीवन हो, मैं एक को कोर्ट के पेपर में लिख के देने को तैयार हूँ, वो आपका कीचड़ में जीवन कमल के फूल की तरह सुंदर होगा होगा होगा, इसको कोई काट नहीं सकता। इसलिए ठाकुर जी पहले ऐसे पुरुषोत्तम हैं जिन्होंने सत्यानुसरण में लिख के चैलेंज किया कि सदगुरु के शरणापन हो जाओ, सतनाम मनन करो, सतनाम मनन करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय कहता हूं तुम्हें अपने उन्नति और उन्नयन के लिए और नहीं सोचना पड़ेगा, और नहीं सोचना पड़ेगा, और नहीं सोचना पड़ेगा। उन्नति और उन्नयन मतलब टका पैसा बाड़ी गाड़ी से नहीं है, वो कर्म करने से आता है। धर्म का पालन करने से उन्नति और उन्नयन मतलब मेरे जैसा नाली में गिरा हुआ लड़का आज माइक में, ऑनलाइन के द्वारा, माइक के द्वारा ईश्वर की बात बोल रहा है, जाजन कर रहा है, ठाकुर जी की बात बोल रहा है। यही परिवर्तन है, यही उन्नति और उन्नयन है। अगर मेरे बात से किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो दादा क्षमा कीजिएगा। सभी को मेरा जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। संजू भाई, आपका जो जाजन है ना, ये रियल जाजन है। आपका जीवन जिंदगी का जो अनुभूति हमको शेयर किया, हम सब प्रेरणा प्राप्त हुए। आपका मंगल हो, ठाकुर जी को हमें प्रार्थना है, आप ऐसे चलते रहेंगे, दुनिया भर को जाजन करो और दुनिया को उदाहरण बनो, यही हमारा ठाकुर जी की प्रार्थना है। इसके बाद जय गुरु। इसके बाद अजय कुमार भौमिक जो सिलीगुड़ी में है, जो सह प्रतिनिधि है, वो ठाकुर, हम उनको बारे में जब सुना है, सिलीगुड़ी में 4 मंदिर का है, वो हम रिक्वेस्ट करेंगे, आपका जिंदगी का जो अनुभूति है हमको थोड़ा प्रेरणा दीजिए। हम उड़ीसा का ये लोग हैं, बहुत सरल लोग हैं। जंगल हमारा जो एरिया है, जंगल पहाड़ का एरिया है। सत्संग खुटुनी मंदिर, पूज्यपाद दादा, पूज्यपाद बड़ा बौदी, पूज्यपाद बाबाईदा, पूज्यपाद सिपाहीदा, पूज्यपाद बिंकीदा का प्रेरणा युक्त मंदिर यहाँ पर है। हम इतना कितना बार वो आए हैं, इसका हिसाब भी नहीं है। आप पूज्यपाद दादा मिनिमम 3 टाइम्स यहाँ पर आते हैं, एवं हम लोग को एक मंदिर बना हुआ है जगह में। और मैं आप बंगाल में अपना भाषा में अपनी जा किसी इच्छा करें, अपना अनुभूति अपने हमारे समय बोलें, हमें खुशी हूँ। आप स्टार्ट करें। अजय कुमार भौमिक, अयोध्या सह प्रतिनिधि शिलचर सिलगुड़ी। अजय दा बोलें। जय गुरु। जय गुरु अजय दा। अजय जय गुरु बोलें। আমার কথা শোনা যাচ্ছে? पूरा শোনা যাচ্ছে, কিছু অসুবিধা নাই, বলেন। আচ্ছা। বন্দে লোকতিলকং সত্যতবর্ত বিভূষণম অমর কৃত্যতুষারণং প্রবুদ্ধং লোকজীবনং প্রণয় প্রমত্ত জাগদীপনং বন্দে জীবন জীবনং সৎপুরুষম। আমার প্রিয় পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীচরণে জানাই কোটি কোটি প্রণাম। জগজ্জননী লক্ষ্মী স্বরূপিণী পরমারাধ্যা জগজ্জননী পরমাশ্রী জানায় আমার কোটি কোটি প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা শ্রীচরণে জানায় আমার কোটি কোটি প্রণাম। আচার্য দেব পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদা রাহুল শ্রীচরণে জানায় আমার কোটি কোটি প্রণাম। তৎসহ শতকোটি প্রণাম জানাই পরম পূজনীয় শ্রী বাবাইদার শ্রীচরণে এবং ঠাকুর পরিবারের সবার শ্রীচরণে। আজকের এই 5 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए आपका कैमरा शेयर कर दीजिए। आप देख, हम लोग आपको देख सकते हैं। 5 मिनट के लिए कैमरा शेयर कर दीजिए। हाँ, शेयर कर दिया है, अभी नहीं शायद, देखते हैं। हमें तो भेज दिया शेयर के लिए, देखते हैं जाता है कि नहीं जाता है।
कैमरा शायद जा नहीं रहा है अभी। ठीक है, आप बोलिए, जब सुखा शेयर करेंगे लास्ट को, हाँ, लास्ट मैं देख लेता हूँ। लेंगे। ठीक है, बोलिए, कीजिए। ओके, ठीक है। तो ये आज मैं देखिए इतना महत्वपूर्ण आज सत्संग में मेरा योगदान करने का मेरा महत्व मिला है। तो इस सत्संग में उपस्थित हुए हैं सभी परम दयाल के परम प्रेममय ठाकुर जी के पवित्र पंजाधारी कर्मी सबों को मेरा आंतरिक राम जय गुरु। उड़ीसा के ये खुंटनी के सभी गुरु भाई को मेरा आनंद जय गुरु और प्रिय भाई बहन सभी को मेरा जय गुरु। तो আমার বেঙ্গল মে বলিए। কেন বলছি যে এই উড়িষ্যার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ অনেক বেশি। আমি একটু একটু উড়িয়াও বলতে পারি, কিন্তু এতটা ফ্লুয়েন্টলি বলতে পারি না যে ঠাকুরের কথা বলার মতো, সবার সামনে বলার মতো আমার সেই ভাষার যে ফ্লুয়েন্সি স্পিড হয়তো হবে না। তাই জন্য আমি উড়িয়াতে বলবো না বা হিন্দিতে বলবো না, এই বাংলাতেই বলার চেষ্টা করছি। আজকের এই আপনাদের এই মহতি সৎসঙ্গে আমাকে যোগদান করতে সুযোগ দেওয়ার জন্য আমার বন্ধু প্রবর শ্রীযুত কৃপানিধি বিশ্বাল দা, যার সঙ্গে আমার পরমদয়ালের এই ভাবাদর্শী আমার সঙ্গে ওনার পরিচয় বোধহয় নট লেস দেন 35 ইয়ার্স। এই সুদীর্ঘ পরিচয় কিন্তু সেটা কি করে সম্ভবপর হয়েছে? একমাত্র সেই পরম দয়ালের সান্নিধ্যে থাকার জন্যই সম্ভবপর হয়েছে। ওনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই যে উনি আমাকে সুযোগ দিয়েছেন আজকে এই মহতি সৎসঙ্গে ঠাকুরের কথা বলার জন্য। আমার জীবনে দেখুন, আমি শুধু সহজ ভাষা, আমি সেই পণ্ডিত হিসাবে কোনো জ্ঞান গর্ভ বক্তৃতা দিতে পারি না। শুধু আমার যেগুলো জীবনের কয়েকটা ঘটনা আমি বলবো যে আমার দয়াল ঠাকুরকে কেন্দ্র করে, সেটা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। যে জীবনে সৌভাগ্য হয়েছিল মায়ের কোলে চড়ে সেই পরম দয়ালকে দর্শন করার, সেটা হয়তো এই 61-62 সনের কথা হবে। সেই সময়ের কথা আমার বিশেষ কিছু মনে নেই, শুধু মনে আছে মায়ের কোলে চড়ে দয়াল ঠাকুর দর্শন করেছিলাম। কিন্তু যা আমার মনে আছে সেটা হলো পরম দয়ালের মহাপ্রয়াণের এই 5-6 মাস আগে, 8 মাস হবে, জানুয়ারি মহাপ্রয়াণ হলো, আগস্ট, সেটা হলো এপ্রিল মাসের কথা, 8 মাস, এপ্রিল 1968। তখন আমার বাবার, আমার পিতৃবিয়োগের পরে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যিনি পরম দয়ালের সভাপতি ছিলেন, তিনি আমার মা সহকারে সেই সবাইকে নিয়ে সপরিবারে আমরা মাসাদিক কাল সেই ঘরে ছিলাম। সেই সময় স্মৃতি মনে আছে। আমার প্রথম দয়ালে দর্শন হয় তখন দয়াল ঠাকুর সেই পার্লার ঘরে অবস্থান করতেন। সেই পার্লার ঘরটা এখন যেখানে আমাদের আছে সেইখানে যে ছিল, এবং আমার যে আমি দাঁড়িয়েছিলাম এখন বর্তমানে যেখানে আমরা বড়নাট মণ্ডপের মধ্যে যেখানে মায়েরা যেদিকে বসেন সেই দিকে ডান দিকের জানলা, সেখানে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা যেত। সেই দাঁড়িয়ে থেকে সেই পরম দয়ালের সেই দিব্য তনু তার দর্শন করা আমার মনে পড়ে। এবং তিনি এই চারদিকেই তিনি ঘুরে ঘুরে ভক্তদের দেখতেন। আমার মনে আছে তিনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কি রে কখন আলি? ওই সবটুকুই আমার জীবনের সম্বল, যে পরম দয়ালের তার শ্রীমুখের সেই কথা আমি শুনেছিলাম। সেই জীবনের অনেক উত্থান পতন জীবনে হয়তো স্বীকৃতি করেছিলাম, শিশুকালেই তার দীক্ষা হয়েছিল। বলতে পারবো না কিভাবে সেই প্রবীণ কর্মীদের সান্নিধ্যে এসে আমার অজান্তেই তার প্রতি যে অনুরাগ সহজভাবে হয়েছিল। ধীরে ধীরে আমি আমাদের নগাঁও জেলার নগাঁও জেলার সদর আমার বাড়ি, সেখানে কখনো মন্দির হয়নি। আমার মাতুলালয়ে ভাড়া ঘর কেন্দ্র ছিল, সেখানে আসামের প্রবীণ কর্মীরা আসতেন। তার মধ্যে একজনের বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনাথ রায়, শ্রদ্ধেয় চক্রপাণি দা ইত্যাদি অনেক প্রবীণ কর্মীদের সান্নিধ্যে আমার ছোটবেলায় আসার সৌভাগ্য হয়েছিল। এবং সেটাই আমার জীবনে পরবর্তী আমার যে পাথেয় হয়ে আমি জীবনে চলতে পেরেছি, এটাই আমার জীবনের সৌভাগ্য। জীবনে প্রথম আমার শ্রী বড়দার সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হয় যখন আমাদের আসামের প্রথম শ্রীমন্দির গুয়াহাটি শ্রীমন্দির উদ্বোধন হয়। সেই সময় আমি কলেজে পড়ি। সেই সময় আমাদের প্রায় মাসাধিক কাল স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে গুয়াহাটি থাকতে হয়েছিল। সেই সময়
আমার মনে আছে এই আমাদের আচার্যদেব পরম পূজ্যপাদ দাদা তিনি দয়া করে তিনি তার সান্নিধ্যে আমাকে এনেছিলেন। তার হাতে অনেক ধমক, তার কাছে ধমকও খেয়েছি, আদরও পেয়েছি, ভালোবাসাও পেয়েছি। তার দু একটা কথা আমি উল্লেখ করব। আমার মনে আছে যে উদ্বোধনের দিন দুয়েক আগে সেখানে আমাদের বর্তমান যেদিকে মন্দির, অর্থাৎ এন্ট্রান্সটা ওইদিকে ছিল না, এন্ট্রান্সটা ছিল মন্দিরের বর্তমান ভাটি মন্দিরের বিপরীত দিকে, যেদিকে ওটা রাজগড় রোড বলা হয় সেইদিকে ওই রাস্তার অপোজিট এখানে আমাদের ভলান্টিয়ার ক্যাম্প করা হয়েছিল। সেখানে একদিন রাত্রিবেলায় ওখানে হয়তো বিশ্রাম করছিলাম, গিয়ে তোর পুজো দাদা গিয়ে সেখানে ধমকি দিয়ে উঠেছিলাম যে এখন কি শুয়ে থাকবার সময় নাকি, যা কাজ করে লাগ গিয়ে। ওই তার ধমকে গিয়ে যে সেই উঠেছিলাম, তারপরে মনে হচ্ছে আমার সেই প্রেরণাতে প্রায় 36 ঘন্টা আমরা না ঘুমিয়ে কাজ করতে পেরেছিলাম। এবং আমার মনে আছে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল যে গুয়াহাটি শ্রীমন্দিরে যখন প্রথম শ্রী বর্দা শ্রী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন, সেই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সময় তিনি আমাকে সেই যে মহালগ্নে ঘটনাচক্রে আমার সৌভাগ্য হয়ে যায় সেই শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে থাকবার। হঠাৎ করে তখন এই যে বিগ্রহ পেছনে তখন যেখানে ঠাকুরের প্রতিকৃতি রাখা, মানে যেটা প্রাচীন প্রতিষ্ঠিত প্রতিকৃতি যেখানে প্রার্থনাদি হতো পূর্ব অব্দি, সেই প্রতিকৃতি এবং আসনটাকে সরিয়ে অভ্যন্তরে একটি প্রকোষ্ঠে নিয়ে যেতে হয়। সেই সময় পট করে আমি পরিচিত ছিলাম বলেই এই এই একটা বামুন ছেলে আছে বলে আমাকে একজন কেউ নিয়ে গেল ভেতরে, এবং আরো বাকি তিনজনের সঙ্গে ওই ঠাকুরের যে পুরনো আসনখানা সরিয়ে ভিতরে প্রতিকৃতি সহ নিয়ে যাওয়া হলো। এবং সঙ্গে সঙ্গেই পরম পূজ্যপাদ শ্রী বর্দা সেই বিগ্রহ মানে এসে প্রবেশ করলেন এবং তিনি বিগ্রহের সামনে এসে সেই বিগ্রহের যে আবরণ ছিল সেই শাল চাদরটাকে তিনি মানে সেটাকে পরিয়ে দিলেন এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন। সেই সময়ের যে সৌভাগ্য আমার দর্শন করার আমার জীবনের মণিকোঠায় সেই অমর হয়ে থাকবে। সেই যে তার যে মানে স্মৃতিটা, সেটা আমার জীবনে হয়তো জীবনের 3.5 পর্যন্ত একটা মানে অমূল্য পাথেয় হয়ে থাকবে। তারপরেও আমার সৌভাগ্য হয়েছিল যে সেই সময় কিছুদিন আমি ছিলাম বলে ওই ঠাকুরবাড়ির সান্নিধ্যে এসেছিলাম এবং সেখানে পূজ্যপাদ শ্রী বর্দা সেখানে উদ্বোধনের 2 দিন পরে সেখানে সরস্বতী পূজা হয়েছিল। এবং সেই সরস্বতী পূজা আমাদের গুয়াহাটি মন্দিরের তৎকালীন পুরোহিত সদ্য প্রিয়নাথ দেব শর্মাদা তিনি সেই পুজো করেছে এবং শ্রী বর্দার হাতে পুষ্পাঞ্জলি তুলে দেওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। এবং সেখানে শ্রী বর্দা সেই তার মানে জলদগম্ভীর স্বরে তিনি মা পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেছিলেন, তা আমার মনে আছে। সপ্তাহখানেক পরে ঠাকুর তারা সবাই চলে আসবেন। সেই সময় যে আমার ইচ্ছা হলো যে শ্রী বর্দার কাছ থেকে মানে আমি তো তখন শ্রী বর্দাকে ভাবিনি, আমি তখন ভেবেছিলাম যে পূজ্য দাদার কাছ থেকে একটা অটোগ্রাফ নিতে হবে। তখন আমি কলেজে পড়ি, তখন আমার যেন ভাব হলো যে একটা সেখানে যদি একটা শ্রী বর্দার একটা দাদার একটা অটোগ্রাফ নিতে পারি তাহলে ভালো হয়। তাই ছোট্ট একটা অটোগ্রাফ বই সংগ্রহ, ছোট হাতে মানে খসাগুলো ছিল না, হয়তো সামান্য একটা ছোট 2 ইঞ্চি বাই ওই বইটাকে নিয়ে শ্রী বর্দা মানে দাদার হাতে নিয়ে গিয়ে বললাম যে আগে আপনি একটা অটোগ্রাফ দেন। পূজ্য দাদা তিনি আমাকে মানে ধমকি বলে, দূর পাগল, আমি কি অটোগ্রাফ দেবো রে, চল বাবার কাছে নিয়ে যাই। তিনি আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন। এখন বর্তমানে যেখানে আমাদের আচার্য ভবন আছে, ত্রিতল আচার্য ভবন অমরধাম, সেখানে সেটা ছিল না। সেখানে এখন বর্তমানে ওই জায়গাতেই একটা ওই বর্দার শ্রীমন্দির যেখানে হয়েছে ওই পাশটা দিয়ে লম্বা করে ওইরকম টাইপেই এল প্যাটার্নের একটা আসাম টাইপ ঘর ছিল। তার একদম যেদিকে বর্দার মন্দিরের দিকের ঘরটার মধ্যে শ্রী বর্দা থাকতেন, সেখানে গিয়ে আমাকে নিয়ে গেলেন এবং আমাকে দরজার সামনে যখন ঢুকলাম দ্বারা শ্রী দাদা গিয়ে পূজ্যপাদ শ্রী বর্দার হাতে ওই অটোগ্রাফ বইটা দিলেন। ছোট্ট একটা বই, শ্রী বর্দার সেই বিশাল করতলে সেই বইটা মানে ভিতরে ঢুকে গেল। তিনি আমার দিকে দেখে হেসে দিয়ে বললেন, আমি কি লিখবো রে? আমি আগে আপনি যা খুশি। তিনি লিখে দিলেন, ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠাই জীবনে সুখী হবার পরম পন্থা। ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠাই জীবনে সুখী হবার পরম পন্থা। তারপরে বলেন নিচে কি লিখবো? আমি আগে যা খুশি। শুধু লিখলেন বর্দা, শুধু বর্দা লিখলেন। ওইটাই তিনি এসেছে দাদা আমার হাতে দিলেন। ওই যে শ্রী বর্দার অমীয় বাণী, ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠায় জীবনে সুখী হবার পরম পন্থা। আমি হয়তো সক্রিয়ভাবে সেভাবে আমি সচেষ্ট হইনি, কিন্তু যেটুকু আমি চেষ্টা করেছি তাতে দেখেছি যে ওই ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠার জন্য যদি লেখে থাকা যায়
তাহলে জীবনে সুখী হবার রাস্তাটা কোনোদিনই বন্ধ হয় না। জীবনে যতই দুঃখ কষ্ট আমাদের জ্বালা যন্ত্রণা আসুক না কেন, আমরা কিন্তু সেই পরম দয়ালের কৃপায় তা সহজেই আমরা উদ্ধার পেয়ে যাব। আমার জীবনে সেটা রন্ধ্রে রন্ধ্রে আমি অনুভব করেছি যে একমাত্র ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠাকে নিয়ে লেগে থাকতে পারলেই কিন্তু জীবনে সুখী হওয়া যেতে পারে। আজ দেখুন, বলতে গেলে এই যে উড়িষ্যা, সেখানে কিন্তু আজ কয়েক হাজারের কাছেই হয়তো মন্দির হয়ে যাবে, এবং সেখানে উড়িষ্যার সঙ্গে যে সমস্ত ভক্তগণ যারা জড়িত হয়ে আছেন, যে তারা প্রত্যেকেই এত ভক্ত বা তারা এত সুন্দর কর্মদক্ষ, এবং তারা প্রতিটি কর্ম এত সুচারু সুসম্পন্ন করেন। সেটা কেন? এই প্রসঙ্গে আমরা একটু ভাষা ভাবে আমি যেটুকু মনে হচ্ছে, একবার আচার্যদের সান্নিধ্যে গুয়াহাটিতে এই ধরনের কথা হয়েছিল যে এই যে আমাদের বিভিন্ন জায়গার ইসেগুলো বলা হয় যে আচার্যদেব গুয়াহাটিতে বেশি থাকছেন কেন, অনেক সময় তখন যেতেন বা সেই সময় থাকতেন বা বিভিন্ন জায়গায় তিনি সঙ্গ করতেন। তখন তিনি বলেছিলেন যে ওই আসামে যে আমাদের কেন যেতে হয়, ওইখানে মানুষ ওই শঙ্করদেব যখন গিয়েছিলেন তখন সেখানের মানুষ তাকে নিয়ে ঝেলেছিল, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে সেই নীতি নিয়মগুলো যখন এসে যায় তাদেরকে বোঝানোর জন্য সেই কন্টিনিউ থাকার জন্য কারোর প্রয়োজন হয়। কিন্তু দেখা যায় যে তখন কিছু দাদা উল্লেখ করেছিলেন যে উড়িষ্যার তাদের যে প্রতিটি কর্ম বা তাদের যে কাজের ধারা, বিশেষত সৎসঙ্গের নিয়ম করে কেন অত যে কেন হচ্ছে যে সেখানে যে প্রভু জগন্নাথের যে ভোগ রাগ সেবা পূজার নীতি নিয়ম করা হয়, সেটা এত পুঙ্খানুপুঙ্খ সুন্দর সুচারু রূপে শাস্ত্রীয় বিধি নিয়ম মেনে এবং ঘড়ি ধরে করা হয়, তাতে উড়িষ্যার প্রতিটি জনসাধারণ, প্রতিটি সাধারণ জনগণের ভেতরেই নিয়ম শৃঙ্খলা বা মেনে চলা বা সময়ানুবর্তিতা বা ফলো করার টেন্ডেন্সিটা এত বেশি যে তাদের কাছে একবার বলে দিয়ে দেখে আসলেও তাদের কাছে আর অত ঘন ঘন যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। যে সেটা তিনি তখনই বলেছিলেন যে উড়িষ্যার ভক্তগণ, যেমন আমি আজকেও অনুভব করলাম, যেমন আমার আজকে অনলাইন খোলার সঙ্গেই এই যে খুনটুনি সৎসঙ্গ বিহারের সুন্দর পরমদ্বারের যে এবং পরমার্থ জগৎজনী শ্রী বর্মা পরম পূজ্য শ্রী বর্দা এবং আচার্য শ্রী দাদার যে সুসজ্জিত আসন দেখেই মন আমার ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে গেল। যে কেন আপনাদের প্রতিটি কাজেই নিখুঁত সুন্দর, কেন যে সেটা আপনারা কিন্তু বাই আপনাদের হেরিডিটি, বাই কালচার, বাই ট্রেডিশন আপনারা পেয়ে আসছেন সে প্রভু জগন্নাথের কৃপায়, সেখানে তার সেবা পূজা হয়ে আসছে। এবং বর্তমান যুগে যখন অবতার রূপে পরম দয়াল এই ধরাধামে যখন আসেন, তাকে ধরার সুযোগ আপনাদের কাছে যখন আসে, আপনারা অতি সহজেই তাকে গ্রহণ করতে পারেন। সেই রকম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আজ এই যে পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র, তিনি এই যে ধরাধামে তিনি এবার যে আসলেন, যে এসে তিনি তার সাধারণ ভাষায় বাংলা ভাষায় তিনি মানুষের মঙ্গলের জন্য সারা জীবন ধরে বলে গেলেন, তা শোনার জন্য বিশ্ব দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তগণ ছুটে আসলো তার কাছে। যে কেন যে তিনি তার আসার প্রয়োজন হলো কেন, যে আপনাদের উড়িষ্যাতে প্রভু জগন্নাথ আছেন, আমাদের বাংলায় আমরা সবাই বলি চৈতন্যদেবের ভাব সম্প্রদায় আছে, রামকৃষ্ণদেব আছেন সেখানে আছেন, বা আসামে শঙ্করদেব আছেন, সেইখানে নিয়েও আবার কেন আসা হয়? আমি প্রভু পরম পুরুষ পুরুষোত্তম শ্রী রামচন্দ্র বা পাবক পুরুষের সেই শ্রীকৃষ্ণর কথা আমি তুলছি না, তারা পুরুষোত্তম পূর্ণ অবতার, এবং আমাদের শাস্ত্রের মধ্যে দ্বাদশ অবতার সবই আছে। যে বর্তমান যুগে এই যে বৈচিত্র্য নিয়ে, পরম বৈচিত্র্য নিয়ে পরম দয়াল ধর্মদা এই ধরাধামে আবির্ভূত হলেন কেন? যে তার শ্রীমুখে ধ্বনিত হয়েছিল যে ধর্ম যখনই বিপাকে ব্যাহনে ব্যর্থ অর্থে ধায়, প্রেরিত তখনই আবির্ভূত হন পাপী পরিত্রাণ পায়। এই যে ধর্মের যে ব্যাখ্যাগুলো, যে বিধিবিধানগুলো, যখন ধর্মের যারা বাহক মানে কেরিয়ার, যেমন আমাদের মতো যারা বিপ্র পুরোহিত পণ্ডিত মোল্লা পাদ্রী গির্জা বা পুরোহিত সম্প্রদায় যারা ধর্মের বিধিবিধান পান্ডা, যারা ধর্মের বিধিবিধানগুলো আমাদের জনসাধারণ বা সাধারণ ভক্তজনের ভিতরে যারা প্রচারিত করেন, তাদের ভিতরে যখন ধর্মের মূল নীতি নিয়মগুলো বাঁচাবার আর বর্ধনার বিধিবিধানগুলো যখন তাদের মনোমাফিক, তাদের মেজাজ মাফিক, তাদের খেয়াল মাফিক যখন তারা
জনসাধারণের ভিতরে বুঝিয়ে দেয়, তাতে কি হয়, ধর্মটাকে কি হয়, ব্যর্থ অর্থে ধায়, ধর্মের মূল অর্থ থেকে দূরে সরে যায়, যে বাঁচা মারার তথ্য থেকে তারা দূরে সরে যায়, বৃদ্ধি পাওয়ার থেকে তারা দূরে সরে যায়। তখন এই যুগে যুগে তিনি যখন অবতার পুরুষরা তখন যাদেরকে পাঠিয়েছেন, তখন দেখেন যে তাদের কথাগুলো অর্থ অন্য হয়ে গেছে। তখন তিনি আবার লেটেস্ট যখন আসেন, তিনি পূর্ণ শক্তি পূর্ণ ব্রহ্ম অবতার হয়ে আসেন, এবং তিনি তখন এমন শক্তি নিয়ে আসেন, তার সঙ্গে তিনি পার্শ্বদের সেইভাবে তৈরি করে নিয়ে আসেন, যাতে তার কথাগুলো পরবর্তী পর্যায়ে এই মানব সমাজের কল্যাণের জন্য একটা সুদীর্ঘ সময় ধরে প্রবাহিত হয়ে যায়। এবার তিনি লীলা করে এবার তিনি যে সৃষ্টিটা করলেন, যে কি করলেন তিনি, এবার তিনি সৃষ্টি করলেন যে যে আচার্য পরম্পরা সৃষ্টি করলেন, তিনি সাতার শ্রীমুখে ধ্বনিত হলো যে ইষ্ট গুরু পুরুষোত্তম প্রতীক গুরু বংশধর, রেত শরীরে সুপ্ত থেকে জ্যান্ত তিনি নিরন্তর। তার সেই ধারা আমরা নিরন্তর প্রবাহমান হয়ে এবার পাচ্ছি। পূর্ব পূর্ণ অবতারগণ যখন এসেছিলেন, তাদের সেই ধারাটা কিন্তু আমরা সেই পরবর্তী প্রজন্মে সেই ধারাটা প্রবাহমান রূপে আমরা কিন্তু দেখতে পাইনি। সেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই হোক, বা পাবক পুরুষ শ্রী রামচন্দ্রই হোক, বা পরবর্তী পর্যায়ে তার সম্প্রদায় আমাদের যে অবতার, যারা পরবর্তী পর্যায়ে আংশিক অবতারগণ এসেছিলেন, আমাদের আসামের শঙ্কর দেবী হোক, আমাদের বঙ্গদেশের চৈতন্য দেবী হোক, বা আমাদের উড়িষ্যাতে সেরকম ভক্তগণ বিভিন্ন আছে, বিভিন্ন জায়গায় নাম দেবে আদি করে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ক্ষেত্রীয় ভাবে বিভিন্ন রকম আংশিক অবতারগণ এসেছেন। তারা কিন্তু তাদের বংশধারাটা সেভাবে রেখেও যাননি। প্রকারান্তরে তারা এমন ভাবে বলে গেছেন যে তারা এসেছেন, তারা নাম ধর্ম প্রচার করছেন, কিন্তু তারা বলে গেছেন প্রকারান্তরে যে এই নামের পরে আরো নাম আছে, যেন আমাদের আসামের শঙ্করদেব বলেই গেছেন যে এই নাম নয় আরো নাম আছে, সহস্র সহস্র নাম ঘুরে যাওয়ার পেছনে, এই ধরনের অর্থটা, যে সেই এই নামের যিনি নামী পুরুষ, তার আগমনের পূর্বেই কিন্তু আমাদের মাতা পরমদয়ালের মাতা যিনি মনোমণি দেবী, তার কাছে কিন্তু হুজুর মহারাজ বলেছিলেন যে এবার রাধাস্বামী দয়াল আয়েঙ্গে বাপ বেটা করকে লীলা করেন। এইবার আমরা পরমদয়াল লীলাটাই দেখতে পাচ্ছি, যে বাপ বেটা করকে লীলা, এবং সেই লীলার একটা লীলায়িত অঙ্গই কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে পুরুষোত্তম ধারাতে আমরা আচার্য পরম্পরা। সে আচার্য পরম্পরায় যে আমি দেখলাম, এই যে আমার প্রথম শ্রী বর্দার কথা বললাম, যে তার দর্শন আমার হয়েছিল গুয়াহাটি শ্রী মন্দিরে, সেই থেকে কিন্তু আমি ধীরে ধীরে তার আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলাম, যা আমাকে আস্তে আস্তে পূজ্য দাদার প্রতি আকৃষ্ট করে নিয়েছিল। এবং ধীরে ধীরে তার ভালোবাসা, তার শাসন, তার তোষণে কিন্তু আমি ওই একদিন পরমদয়ালের এই পবিত্র পাঞ্জাতের কর্মী যোগ্য হয়ে উঠলাম, এবং তিনি আমাকে দীক্ষাদানের অধিকারী দিলেন আজকে থেকে প্রায় 37-38 বছর আগে। এবং তিনি দয়া করে তিনি এই অধমকে দিয়ে এই নগাঁও জেলা মন্দির তিনি তার আশীর্বাদ করে আমাকে দিয়ে করিয়ে নিলেন নগাঁওতে। এবং তার পরবর্তী পর্যায়ে তিনি আমাকে বললেন, সেই যে চাকরি জীবন আমাকে বললেন পরীক্ষা দিয়ে তুই এখন বাইরে যা। তিনি আমাকে অল ইন্ডিয়া লেভেল পরীক্ষা দিতে বললেন, আমি অল ইন্ডিয়া লেভেল পরীক্ষা দিয়ে ফার্স্ট হয়ে বেরিয়ে এলাম। এবং ধীরে ধীরে পরীক্ষার শেষে আমি যখন এক একটি পদোন্নতি ম্যানেজার পদোন্নত হচ্ছি, বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছি, সেখানে কিন্তু ওই যে বলছিলাম ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠা জীবনে সুখী হবার পরম পন্থা, এমন জায়গায় ট্রান্সফার হয়েছে এখানে উগ্রপন্থীর দল একটা নয় দুটো নয় 7টা উগ্রপন্থীর দল, কিন্তু সবাই ওখানে ভয় যেতে চাইতো না। আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বলল এই বেটাকে পাওয়া গেছে, এই বেটাকে পাঠিয়ে দাও। আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো, আমি তো আরাম করে চলে গেলাম, এবং দেখলাম সবাই জানলো জয়গুরু মানুষ। আমরা উল্টো উগ্রপন্থীর দল আমাকে আরো কিছু সাহায্য করছে। ওরা আমি যেখানে থাকতাম সেখানে ওরা ওই সন্ধ্যা হলে এরকম করে ঘুরতো, আমাকে জয়গুরু বলতো, এমনকি দীক্ষাও দুজনে হয়েছিল। এবং তারা চাদরের নিচে AK-47 নিয়ে ঘুরতো, আমাকে বলতো যে আপনি কালকে কোন দিকে যাবেন, যে আমি ওইদিকে, আমরা ওইদিকে যাবেন না, ওইদিকে আমরা যাবো। এরকম আমাকে আগে থেকে ওরা সাবধান করিত যেন আমি কোনো বিপদে না পড়ি। আমাকে বরঞ্চ আমাকে ওরা সুরক্ষা দেওয়ার জন্য সচেষ্ট থাকতো। যাই হোক, এইখানে কেন হয়েছিল যে আমি ওখানে গিয়েও কিন্তু আমি কিন্তু ওই ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকতাম। যেখানে শ্রীমন্দির আছে সেখানে শ্রীমন্দিরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থেকেছি, বা যেখানে শ্রীমন্দির হয়নি সেখানে শ্রীমন্দির কি করে শুরু করা যায়, যে দেখা যাচ্ছে সেখানে হয়তো বছর 2 বছর ধরে শ্রীমন্দির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়ে আছে, সেই কাজ হলো হয়, তখন আমি চেষ্টা করলাম ওই 2-4 জন গুরু ভাইকে নিয়ে এক রাতের ভিতরে কি করে সেই ইষ্টার্ঘ মানে একটা প্রারম্ভিক লক্ষাধিক টাকা সংগ্রহ করে যাতে কাজ আরম্ভ করা যায়, তার জন্য তাদের হাতে দিয়ে আমি কাজ শুরু করিয়ে দিলাম। আবার আমার ট্রান্সফার হয়ে গেল।
আবার এমন জায়গায় ট্রান্সফার হলো দুর্গম বন্যা পীড়িত এলাকায় ব্রহ্মপুত্রের পারে, যে গ্রামের পুরো গ্রাম ভেঙে যাচ্ছে, সেখানে একটা মাটি কিনেছিল এক গুরু ভাই, তিনি আজকে থেকে 20 বছর আগে মারা গেছেন। তিনি মারা যাওয়ার সময় তিনি আমাকে বলে গেছিলেন যে অজয় দা, আমি তো মারা সিভিল জেলা সিভিল মারা গেছিলেন, আমি তো পারলাম না ওখানে কিছু করতে, আপনি কিন্তু ওই জায়গাটা খেয়াল রাখবেন। ভুরাগাঁও বলে একটা জায়গা, সেখানে একসময় ব্রহ্মপুত্রের পারে বিশাল জাহাজ যেত, পরে আস্তে আস্তে সেই ভেঙে ভেঙে একটা বিষয় হয়ে যায়, গ্রামগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল, সেখানে একটা কেন্দ্র ছিল, মানে মাটি ছিল। আমি সেই ট্রান্সফারে যখন গেলাম, সময় আমার তো মানে যাবোই না, সেখানে মনে হয় খুব দুঃখ যে এই দুর্গম জায়গায়, মানে খুব অকওয়ার্ড পজিশনে বাবাইদার কাছে যখন আমি গিয়ে নিবেদন করলাম, সেই বাবাইদা আমাকে বললেন, ওই যেখানেই যান এক ঠাকুরের মন্দির বা কেন্দ্র তো থাকবে বা হবে, যেখানেই আমাদের বেঁচে থাকা, আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হলে ওই কেন্দ্র বা মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে, এবং ওই যুক্ত থাকাটাই হলো বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়। এবং সেটা আমি রন্ধ্রে রন্ধ্রে উপভোগ করেছি। আমি যাওয়ার পরে সেখানে এমন প্রচন্ড বন্যা হলো, সমস্ত কমিউনিকেশন কাট অফ হয়ে গেল। সেরকম দীক্ষা দিবসের দিন আসলো, সেখানে কিছু দীক্ষার ব্যবস্থা কোথায় করব, আমি ফোন করে জানলাম যে না, কোনো কারোর বাড়িতে করা যাবে না, ওপেন জায়গাতেও করা যাবে না। বললাম যেরকম একটা মাটি আছে, কিন্তু সেখানে কিছুই করা হয়নি, এমনকি সেখানে হয়তো বেদখল হওয়ার উপক্রম। ওইখানে শুনেছি একটা স্কুল, বললেন যে সেখানে একটা কেন্দ্র ঘরের মতো করে নেওয়া যায় কিনা, ছাপড়া মানে টিন দিয়ে বাঁশ দিয়ে উঠিয়ে একটা ঘরের মতো করা যায়, যেখানে বসে ঠাকুরকে আসন বসে প্রার্থনা করা যাবে। তো আমি স্থানীয় গুরু ভাইদের সঙ্গে আলোচনা, তারা উদ্যোগী হয়ে আশেপাশের গুরু ভাইদের নিয়ে ওই মানে 3-4 দিনের মধ্যেই একটা মানে 4-5 মানে বান্টুল 3 জোগাড় হয়ে মানে 24 ফুট বাই 18 ফুট ঠাকুর ঘর, একটা ঠাকুর ঘর হয়ে গেল এবং বারান্দা হয়ে গেল, যেখানে দীক্ষা দিবসের দিন দীক্ষাও হলো। এবং সেখানে গুরু ভাইরা ঠাকুরকে কেন্দ্র করে ওই আজও সেখানে কিন্তু ওই সৎসঙ্গের ভাগ প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে। এই যে এইভাবে যে তার দয়ায় যেখানেই যুক্ত থাকার চেষ্টা করেছি, দেখেছি সেখানে কিন্তু ওই যে একমাত্র ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠায় থাকলেই কিন্তু জীবনে সুখী হবার সেই প্রচেষ্টাটা আসে। যে এই যে আমি কেন বলছিলাম যে এই যে তার যে পরম্পরা, যে আচার্যদেবের পরম্পরা, যে তার এই যে শ্রী কথা বলছিলাম যে আচার্যদেব শ্রী দাদা একবার গুয়াহাটি শ্রী মন্দিরে তিনি অবস্থান করছেন। সেই সময় একদিন মানে ভোরবেলায় আমি রাত্রিবেলায় আমি আমার শরীর ভীষণ একটা মানে পেটে একটা ব্যথা হচ্ছিল। তো সেই সময় আমি ভাবলাম যে সকালবেলায় যাবো, গিয়ে ডাক্তার দেখাবো। তো ওইখানে ভোরবেলায় দিয়ে তিনি সেখানে বসে আছেন ওই নাটমণ্ডপে, আমি সেখানে জানলাম দাঁড়িয়ে আছি। তো এই অনেকক্ষণ মানে পরে ভাবছি দাদা উঠে গেলে আমি যাবো, তিনি হঠাৎ করে উঠে পড়লেন, এসে বাইরে দরজা দিয়ে বাড়ি এসে ঘুরে আমি জানলাটা দাঁড়িয়েছিলাম, তার ডান হাতটা আমার পেটের মধ্যে ছুঁয়ে ঘুষি দিয়ে বললেন, বাহ সুন্দর পেটটা বানিয়েছিস তো, বলে হেসে তিনি আচার্য যখন ঢুকে গেলেন। একটু আমি খেয়াল করলাম যে আমার পেটে ব্যথা সেরে গেল। যে ওই যে তার স্পর্শে আমার যে ওই একটা অনুভূতি, মানে এটা অনেকদিনই ছিল মাঝে মাঝে, সেটা কিন্তু আমি দেখলাম তার স্পর্শে কিন্তু তিনি এই আমাকে নিরাময় করে দিলেন। এরকম তার আরো তার স্মৃতি আছে। আমি এই শুধু বলে যাচ্ছি যে এই জন্যই যে পূজনীয় বাবাইদার কথা আমি চলে আসছিলাম। আমার বাবাইদার সান্নিধ্যে আসা যে আমি 97 যখন প্রথম যে এসে যাচ্ছি বোম্বাই এসে যাব প্রথমবার, সেখানে আমার পুনেতে আমার ভাতিজা ছিল, তখন বাবাইদা তখন সেখানে আমাদের ঠাকুরবাড়ির সামনে গেটের সামনে অবস্থান করতেন। রাত্রিবেলায় এখানে তিনি চেয়ারে বসে আছেন, আমার ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছি। সেই সময় তিনি আমাদেরকে কিছু সাবধান বাণী শোনালেন। আমার ছেলেটাকে মানে হাতে নিয়ে একদম আদর করে ওকে মাথা হাত বুলিয়ে মানে ওর ধারে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, বসে রইলেন কতক্ষণ, এবং বললেন কখন যাবেন, যে আমি যে ট্রেনে যাবো কি গাড়ি ঠিক করেছেন আমাকে, না ও যে মানে তাহলে গ্যারেজ থেকে গাড়ি বলে দিলেন। বলে দিলেন যে গাড়ি না পেলে যদি কোন রকম অসুবিধা হয় ফেরত চলে আসবেন। আমি তার ইঙ্গিত বুঝিনি, এবং আমরা যখন চলে যাবো যান এখন যান, আমাদের সময় হয়ে গেছে চলে, আমরা যখন চলে যাচ্ছি তিনি এক দৃষ্টি আমাদের তাকিয়ে রইলেন, দৃষ্টি চোখে যতটা সময় যায় আমি দেখছিলাম। আমরা গাড়ি নিয়ে চলে আসলাম, সেখানে অনেক রাস্তা দুর্গম হয়েছিল, সেইখানে আমরা ছেলেকে নিয়ে আসার সময় অনেক বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলাম। এবং আসার সময় ফিরাত আসার সময় ছেলে ট্রেনের মধ্যে অনেক জ্বর হয়ে ভীষণ জ্বরে ছিল, যাওয়ার সময় প্রবলেম ছিল কিছু, আমাদের না যাওয়াই উচিত ছিল, তার ইঙ্গিত বুঝতে পারিনি। ওই যে তার দৃষ্টিতে আমার ছেলে মৃতপ্রায় ছেলে ট্রেনের মধ্যে 8 ঘন্টা মরেছিল, তার কোনো ডাক্তার মানে খুঁজে পাচ্ছিলাম না, পাল ছিল না। হঠাৎ করে 8 ঘন্টা পরে আমার ছেলে চিৎকার দিয়ে উঠলো, মা মা বাবাইদা এসেছে, বাবাইদা। এই যে বাবাইদা আমাকে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। হ্যাঁ, 8 ঘন্টা পরে তখন আমাদের কান্নার রোল পড়ে গেছিল আর কি। তো ওইখানে মৃত পায়ে ছেলে বেঁচে উঠলো বাবাইদার কৃপায়। এই যে বাবাইদা দয়া করে যে তাকে বাঁচিয়ে দিলেন, এটা তার জীবনে একটা যে পরম প্রাপ্তি। জীবনে হয়তো পরবর্তী পর্যায়ে বাবাইদার মাধ্যমে তার সৎনাম হয়, তার সস্তিনী হয়, এবং সেটাই তার জীবনের একটা পরম প্রাপ্তি। যে আমি সেই কথা বলছিলাম যে এই যে তাদের
আচার্য পরম্পরা যে এই যে তাদের আমাদের লীলাটায় প্রবাহিত হয়, এখন পূজনীয় অবিন বাবার স্মৃতিও আমার জীবনে আছে, তো আমি সেই দিকে চলে যাচ্ছি না। তো আমার জীবনের ঘটনা আমি বললাম এই জন্যই যে এগুলো একটা আমার জীবনের অমূল্য পাথেয়, এবং আমাদের তত্ত্ব কথা যে বা সেটা আমাদের বোধের যে আসে যে এই আপনাদের খুনটুনি যে সৎসঙ্গ মন্দির, যে সেটা আমি যে আমার জানা আছে যে আচার্য পরম্পরায় এই খুনটুনি মন্দির ধন্য হয়েছে, তাদের ঠাকুর বাড়ি সবার আগমনে এটা তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। এবং আমার সেই উড়িষ্যার প্রতি আমার একটা বিশেষ ভাবে এই জন্যই যে আমার পুরী মন্দিরে আমি বহুবার গিয়েছি, ভুবনেশ্বরে, কটকে, বিভিন্ন যে মন্দিরে আমি গিয়েছি, কিন্তু পুরী মন্দিরে আমার বিবাহোত্তর জীবনে আমার দ্বিতীয়বার মাকে নিয়ে প্রথমবার গিয়েছিলাম, দ্বিতীয়বার যাই আমার বিয়ের পরে, সেখানে আমার বিয়ের পরে প্রথম আমার জামাইবাবু দীননাথ শর্মা দাদ আমাদের অশোক আশ্রমে থাকতেন, তিনি সৎসঙ্গের শ্রী পর্দার সময় আচার্য মানে সে দেবের ঋত্বিক সচিব হিসাবে তিনি দীক্ষা দিয়ে পাঞ্জাবের কাজ দেখাশোনা করতেন। তিনি আমাকে কিছু টাকা দিয়েছিল, বলছে যা বউকে নিয়ে পুরী ঘুরে আয়। সেই সময় হাতে টাকা পয়সা ছিল না, আমি চাকরি মাত্র করতাম সামান্য। তো সেই সময় পুরী মন্দিরে থেকে ছিলাম, সেই পুরী মন্দিরের সে অমৃত তুল্য ভোগ সে খেয়ে আমাদের জীবনে আমার ওই ঠাকুর ভোগের স্মৃতি আমার মনে আছে, যে পুরী মন্দিরে যে ভোগ খেয়েছিলাম আমি আর তেমন ভোগ কোথাও পাইনি। আমি অনেক শ্রীমন্দিরে ভোগ খেয়েছি, কিন্তু পুরী মন্দিরের মতো এমন অমৃত তুল্য স্বাদিষ্ট ঠাকুর ভোগ কোথাও আমি, ঠাকুরের প্রসাদ আমি কোথাও পাইনি, যেটা আমার জীবনে একটা মানে অমূল্য স্মৃতি হয়ে থাকবে। তাই সেই স্মৃতিগুলোই আমাদের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাবে ইষ্টপথে। নিরবচ্ছিন্ন তৈল ধারাবত যেন নিষ্ঠা নিয়ে যেন অস্খলিত হবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যেন ঠাকুরের কাজে লেগে থাকতে পারি। আপনাদের কাছে আমার এই মিনতি রেখে আজকের এই উপস্থিত পরম দয়ালের পবিত্র পাঞ্জাদের কর্মীদের এবং ইষ্টবান দাদা মায়েদের সবার প্রতি রইল আমার আন্তরিক সশ্রদ্ধ জয়গুরু। আমাদের আজকে সৎসঙ্গ সময় আমি অনেকটাই নিয়ে নিলাম, আপনাদের সবার কাছে আমার এই আজকের এই অনলাইন সৎসঙ্গে আমার অনুভূতির কথা বলতে দেওয়ার জন্য সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সবার কাছে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমি পরম দয়ালের শ্রীচরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম জানিয়ে সবাইকে আমার জয়গুরু জানাচ্ছি। অজয় দা, আপনাকে জয়গুরু। আপনার ঊর্ধ্বে যাজন আমার সবাইকে আমোহিত বিমোহিত করেছে। ঠাকুরের প্রান্তে আমার প্রার্থনা আপনার আরো 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 আগে আর সবাইকে আশীর্বাদ করুন, আমি যেন আরো আগেব। তারপরে আপনার সঙ্গে আপনার বন্ধুতা আছে আমার বিশাল ভাই সঙ্গে। এটা বললেন খুঁটুনি মন্দিরের কথা, আপনি বললেন পুরী মন্দিরের কথা, প্রসাদ কথা বললেন, কটক কথা বললেন, এবং জগন্নাথর কথা আপনি বললেন, এবং পূজ্যপাদ বাবাইদা, পূজ্যপাদ আচার্য দেব এবং ঠাকুর পরিবারের অনুভূতি আপনি খুব গম্ভীরতার সহিত খুব উর্জি ভাবে আপনি আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, সেটা বহুত বহুত ধন্যবাদ। এরপর আমি অনুরোধ করব আমার কুপান্তি ভাই যদি থাকি প্রেজেন্টে 5 মিনিট কই কনক্লুজন দিয়ন্তু, তারপর ভালো বিষয় জয়গুরু কুহন্তু। জয়গুরু 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 বলেন। জয়গুরু 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 परम प्रेम श्री श्री ठाकुर जगजननी श्री श्री बड़मा जुगाचार्य श्री श्री बड़दा प्रधान आचार्य देव श्री श्री दादांगर आत्मचरण कोटि कोटि प्रणाम। आज दिन रे आमे माने खुंटुणी सत्संग विहार जोटा को परम पूज्यपाद श्री श्री दादांगर लखींदर भाई हंतु, पारेश्वर जेना भाई हंतु, प्रफुल्ल भाई हंतु, नारायण भाई हंतु, आंको अक्लांट चेष्टा आवेदन निवेदन परम पूज्यपाद श्री श्री दादा खुंटुणी जगह को जो धोती रे जो गुगुला लगी था आपण माने देखिथिबे, आचार्य देवकर इप्सित जगह आमे किछि करि पारने सेति दुख नाही, किंतु आज दिन रे मते बहुत भल लागला जे जो संजू भाई रो जाजन संजू भाई जीवनटा को एते बाळे ठाकुर जो बंचेसिंदी मोहनलाल सांगरे मु बुलिची, गंगा सिंह को बापा गंगा सिंह की कोन गोटे आनिबे भी मु श्रद्धेय बुबू को रिक्वेस्ट करची गंगा सिंह टाटार। आज अजय भाई विषय मुझे जान नी, ये आर मोर पान खाइबार सांग, ये पान खाइबारे आ गोटे खुशी मिजासा लोक आमर पुरी 89 रु देखा साक्षात आ सब थर देवघर गले तांको बौदी से मते निज भाई भलिया देखंती। जाओ ठाकुर विषय इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा ही आमर कर्म, सेटा जो आम जीवन मुख्य। आमको किए चिन्हु न चिन्हु किंबा देखे हवा मते
बारंबार पूजनीय सिपाही कहती जे कोठी छिड़ा हेले फोटो न देखा जाए एटा देखिबू एटा मु लखींद्र भाई की बहुत थर कही तापरे आ गोटे बड़ विपद पड़ला जो घिचा टणा हुए विभिन्न जगह जीवाई बसवाई जगह मिलेनी मत थरे थर पूजनीय बाबादा पचारती जे तू से नथिलु मु कहली ना भिडरे मु कहली भिडरे मु गलिनी ठरला फलारे कहले निज जगह निजे केमती करिया हुए सेटा निजको साब्यस्त करिया पड़े तेणु करके आमे माने बहुत काम बाकी अच्छी श्रद्धेय लखींद्र भाई विजय भाई पार्श्वदा भी आमको भल देखौछंती आम माने केमिति 8गड़ सब डिविजन रे कौन से लोक अधिकृत न रुए तिगिरिया रे भी अछंती भल बड़ंबारे अछंती नरसिंहपुर अछंती आमे माने समस्ते एई कार्य रे ब्रती रहबा जय गुरु पूज्य अजय भाईंकर अजय भाई भौमींकर आपण वीडियो बर्तमान देखि पारले मु या परे टिके अनुरोध करबी हमर पूज्य पारदा 5 मिनिट कहीं कन्क्लूज करंतु हमर एठिका अध्यक्ष बयस्क लोक एवं 8गड़ सब डिविजन मालिक कहले हम सत्संगर पूज्य पारदा 5 मिनिट आलोचना करंतु जय गुरु जय गुरु पूर्व वक्ता जी कहते बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्ति जीवन केवली भाव सुंदर मधुर उठी विशेषकर छिन्न भिन्न जीवन केवलिया पुरुषोत्तम धरी सुंदर मधुर समापन होती अति सुंदर भाव में कहते ठाकुर तो कहते मनुष्य अनेक गुण ग्रहण कर आसी थाए जन्मगत संस्कार कर आसी थाए कि पुरुषोत्तम न धरिले व्यर्थ हो जाए तेणु जहाँ कहुए सर्वघट हरियाय गिरी सुतम ज्योति सद्गुरु चक्रवर्ती कैसे प्रकट होती सद्गुरु पुरुषोत्तम धरी विच्छिन्न जीवन पूरापूरी लुहा भाया गोटे कलंकित जीवन चुंबक संस्पर्श आसी केवलिया सुंदर समाहित होता अति सुंदर लगिला कथा कही परवर्ती बर्तमान संजू भाई कथा संजू भाई तो जड़े भल मनुष्य जड़े कर्मी सुंदर भाव ठाकुर कर्म करिलीगुड़े रही मंदिर निर्माण कर जीवन लक्ष्य हूँ से प्रकृत आपण जिते खातु जिते पीतु जिते सुंदर करूँ जिते बुलतु जिते दीक्षा दिखाई जीवन व्यर्थ हो जाए कहीं कहुई ठाकुर से कहते लव युद्ध टू लव डेड इज डेड प्रीति कर ठाकुर साथ कि प्रीति कर्म करना जीवन टा व्यर्थ हो जाए गुरुत्व प्राय हो जाए मूल्य किसी न था निरर्थक हो जाए संजू भाई जीवन में अनेक ठाकुर प्रतिष्ठा कर मंदिर निर्माण कर सेवा कर तेणु जीवन अति सुंदर मधुर होती ये दुई भाई आमको व्यक्ति जीवन सुंदर मधुर कर इष्ट कर्म कर जीवन को सार्थक सुंदर कर दुईटी जीवन तो उदाहरण कृपानिधि भाई तो शेष कथा कहले तो आमर मनीष आमर स्थान भाई भाई आम सांगे सब इत्यादि अच्छा चुंबक से कथा कहते सत्संग आज सुंदर खूब उपभोग्य होती सुंदर होती मधुर होती आसंता समय आम पूज्यपाद आचार्य आशीर्वाद सत्संग करने जाऊँ भाद्र सत्संग करने समस्त ब्लॉक समस्त कर्मी चारिआडे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण समस्त आम एकत्रित रही जाइए शपथ ग्रहण करूँ आशीर्वाद को आदेश को बहन कर पूरा सुंदर भाव 31 दिन काल ठाकुर कथा आलोचना भल कर्म निर्वाहित करने शपथ नहीं बुबू आमर अच्छी संचालन कर इत्यादि सुंदर भाव यूनाइट वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल एकत्र भाव ठाकुर कार्य देखिए मनीष कर जाए ताहले केते सीमा को पड़े जाए केते आगुसार हुए तार ठिकाना है जो विच्छिन्न हो जाए जो विकेन्द्रिक हो जाए मनीष से फल प्रत्येक जीवन खूब दूरभिशन तलू को अर्धगति हो जाए ठाकुर शक्ति सामर्थ्य पूजवाद बिंगिता आमर आगे अच्छा जहाँ करू गछटे लगेबू गछटे काटबू मंदिर टे करू इत्यादि करू सत्संग करू बुबू माध्यम आम करू भाद्र सत्संग करू से जहाँ निर्देश देवे निर्देश देते से अनुसार आम कि चलू जीवन मूल लक्ष्य हूँ इष्ट को प्रतिष्ठा कर चलवा स्वतः ही जदि मनीष प्रतिष्ठा कर चले निजे ही प्रतिष्ठित हो जाए तार अज्ञात से जानीपे ना आपण मानक बहुत 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 धन्यवाद समझे आम सहित जोग देते आउ जो भाई मैंने आम भावुँ पारिवारिक सत्संग आम सब करूँ आज गोटे दिन जो दिन अन्य मान निरूपण कर आम बहु भाव समस्ते एकत्रित हो ये सत्संग अनुष्ठान करूँ आउ जो भाई मैंने आम भावुले आम बहुत सेटा नुह आम सोमवार करूँ रविवार करूँ शुक्रवार करूँ शनिवार करूँ अमावस्या करूँ संक्रांति करूँ पूर्णमी करूँ से ही प्रथा आम चल रखीचु आम भीतर सीमाबद्ध पारिवारिक सत्संग माध्यम आम उद्बुद्ध हवा जार उद्बुद्धर परिमाण हूँ आज आम बहु भाव 80-90 परिवार युक्त होइछु इत्यादि
आशा करूछु भाद्र सप्तमरे सदा 100 परिवार युक्त होइजिबे परवर्ती समय जहाँ बाबा आशा करछनी या पर जेते शटडाउन सरी जिवो लॉकडाउन सरी जिवो कोरोना तार चली जिवो केते दीक्षा हबो जे तार ठिकाना नै कना भाई माने हमर बर्तन पूरा पूरी उद्बुद्ध होई असनी सेही आशा करिबा तांकर इच्छा पूर्ण करिबा लक्ष्मी नारायण परिवार पर्यटन हमर जेते इत्यादि असनी समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद देई मोर कथा सांग करछु जय गुरु आबर पारदा जो कहले संजू भाई प्रथम जो भाई आनंद कुमार सिन्हा सी होतन संजू भाई पर जे कहले आबर अजय कुमार भौमिक सी होतन सिलीगुड़ी रो से संजू भाई अजय कुमार रो भौमिक ना होती संजू भाई नुहे प्रथम जे कहले सी होतन संजू भाई जाऊ द्वितीय भाई ना संजू भाई कहते सेटा करेक्शन करनेबे आउ जहाँ वर्तमान सत्संगर शेष कार्यक्रम मोटे बर्तमान ध्वनि दउची या पर सत्संग सांग करिया वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेम ठाकुर श्री अनुकूल चंद्र जी की जगत जननी कल्याणमयी श्री परमा की युगाचार्य श्री पड़ता की वंदे पुरुषोत्तम वंदे आर्य पित्रेन वंदे मातृवर्गान वंदे अहंकुष्ठ दैवतम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे परम प्रेम ठाकुर श्री चंद्र जी की 18 सत्संग